Hey guys, my name is Vibhu and I create content on current affairs for UPSC. I welcome you back to this current affairs concert series where we are covering month-wise the most important current affairs targeting the UPSC Prelims 2025. In this lecture, we are going to cover the current affairs from the month of November and December 2024. I would like to inform you that there are two more lectures left in this series and I would highly recommend you all to attend those lectures live by registering into our free current affairs revision course on our website www.godsepado.com. You can also download the PDF notes of this lecture by registering into the same course. You will get the link in the description of this video. The lectures will be conducted on 11th of May and 18th of May respectively. Thank you so much. I hope you will enjoy the lecture. If you do let me know in the comment section. Do not forget to like the video and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much. Enjoy. Right. So, hey guys, welcome to the current affairs concert. Tonight, we are going to cover the months of November and December 2024. But before that, I have few things to discuss. As of now, when I'm recording this lecture, we are on 4th of May. Our exam is on 25th of May. तो लगभग अगर मैं बोल के चलूं आपके प्रोडक्टिव 19-20 दिन बचे हैं, 20 days to go, and at this moment you are standing at the point जहां पे आपको मेंस वगैरह कुछ नहीं सोच दिमाग में आ रहा होगा. All you have is static and current affairs which are required to clear this prelims वाला hurdle. Whoever is attempting the exam right now, they are only concerned about कि किस तरीके से कट ऑफ क्लियर हो, राइट? ये बात हमको मालूम है that यूपीएससी में कट ऑफ निकालने के लिए प्रीलिम्स के अंदर यू नीड करंट अफेयर्स एंड यू नीड स्टैटिक का बढ़िया सा कॉम्बिनेशन चाहिए होता है. I am teaching current affairs for this attempt since last lot of months now. And after preparing and reading newspapers every day, reading so much of content, I myself have created so many things in the past few months. I think now when I sat down and I was consolidating everything, I could see the patterns. आप लोग शायद वो नहीं कर पाए होंगे because आप लोगों को consistently stress था. आप लोग न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे होंगे, ऑप्शनल पढ़ रहे होंगे, स्टैटिक पढ़ रहे होंगे, लेकिन मी बीइंग अ करंट अफेयर्स टीचर जिसकी अभी लाइफ दिन रात सुबह शाम इज रिवॉल्विंग अराउंड करंट अफेयर्स, आई वाज इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड, टू रीड, टू एनालाइज कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या आ सकते हैं, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है? So I was in a better position to analyze everything, and after analyzing everything, consolidating my own notes, reading newspapers every day, I was able to identify certain patterns. So everything जो मैंने आज तक समझा, पढ़ा, देखा, I have consolidated it, ठीक है, in a very structured manner. I'll let you know. अगर आप उस स्ट्रक्चर और ऑर्डर को आज से भी फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, you will be able to cover all the current affairs till your prelims. अब वो क्या है, आराम से उसको देखते हैं. लेकिन उससे पहले, ये बात मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन मैं आपको कुछ कोइंसिडेंसेस दिखाना चाहूंगा. आपको मालूम है सिकाडास पे क्वेश्चन आया अप्रैल 9 2024, डेट मार्क करी हुई है, क्वेश्चन मार्क करा हुआ है, और न्यूज़पेपर में कहां पर आया था, पूरा पैराग्राफ था. ये नहीं कि कोई एब्सर्ड सोर्स है. इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, सिर्फ दो मेन जो सोर्सेस हैं. पास्ट 6 मंथ्स अगर आप देखें तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं. फ्लाइंग फॉक्स का मेंशन अगस्त 17 2023, एग्जाम से 9 महीना पहले क्वेश्चन आता है. उसके बाद ये देखो, बीट रूट के ऊपर मैंने आपको बताया था अप्रैल 24, एग्जाम से 2 महीना पहले न्यूज आती है. बीट रूट कैसे काम करता है, ब्लड वेसल्स को कैसे डायलेट करता है, न्यूज आती है, ठीक है, एंड सीधा आप देखते हो क्वेश्चन आता है स्ट्रेट अवे. यहीं से क्वेश्चन उठ के आया, नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे देखो नाइट्रिक ऑक्साइड. अच्छा, उसके बाद आप देखोगे अप्रैल 7 2024 क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली सेम. आप अगर आप देखोगे यहां पर स्टेटमेंट्स थी पीएफएएस को लेके, जो स्टेटमेंट द हिंदू में आई थी एग्जैक्टली सेम आपको यहां पर क्वेश्चन में दिखेंगी. पहले भी मैंने ये चीजें कई बार डिस्कस करी हैं. February 21 एग्जाम से कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले, कोकोआ के मेजर प्रोड्यूसर्स आते हैं, दे वर इन द न्यूज, यूपीएससी फ्रेम्ड अ क्वेश्चन. नाउ अगेन pumped hydro storage, it was in news, was very clearly in news. October 4 2024, you get the question. Now you see July 24 2023, membrane bioreactors, ये देखो सेम, ठीक है, everything was there exactly. सलोनी, आई एम लेटिंग यू नो, अभी आप इस बस 5 मिनट सुनो, आपको पूरा समझ आ जाएगा
कि क्या क्या एग्जाम में डायरेक्टली आ रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल डायरेक्टली, और कैसे आप लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हो. नाउ दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स, बट नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड व्हाट आई कॉल अ करंट अफेयर्स डोजियर. ये है जी आपका करंट अफेयर डोजियर. बड़े ध्यान से और स्ट्रक्चर्ड वे में आप इसको देखना शुरू करना. First of all, you have the current affairs concert, which is the series which is going on. We have covered January to December 24. November and December का लेक्चर ये चल रहा है. So, current affairs concert January to December 2024. First thing should be in your priority list. मैंने इसकी एक कंबाइंड पीडीएफ बना दी है. आज का लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी एंड देन टुमारो यू विल गेट अ कंसोलिडेटेड पीडीएफ जहां पर सब्जेक्ट वाइज all the topics of current affairs concerts are consolidated. So this is approximately 180 pages का ये document शायद अभी तक बना है, और इसमें there are a lot of questions which I have designed. अगर मैं दिखाऊं आपको, मैंने ये पीडीएफ बनाई दी है, बस मुझे आज के टॉपिक्स और ऐड करने हैं. All the topics are there. All the topics we have discussed as अब तक we have covered it in this PDF. Everything. ठीक है? So the first thing you need to do is this current affairs concert PDF, absolutely free of cost. आपको कोर्स के सेक्शन में मिल जाएगी. I'll also upload it on my Telegram channel. अब January 25 and February 25, 2025 का लेक्चर होगा 11th of May, यानी कि नेक्स्ट संडे. एंड उससे नेक्स्ट संडे we'll cover March and April together, 18th of May. So we will be done for our like 16 complete months. Absolutely done and dusted. ठीक है? यहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. लेक्चर देखना है लेक्चर देखो, वरना अगर खाली पीडीएफ को फॉलो करना है पीडीएफ को फॉलो करो. पर मैं आज भी बोलूंगा, आज का और अगले 2 लेक्चर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, गिवन के उनका डायरेक्ट रेफरेंस होता है एग्जाम में. ठीक है? तो नेक्स्ट 3 लेक्चर्स आर ग्रेटर देन ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स, तो ये भी बात याद रखना. देन आई डिड दिस सीरीज कॉल्ड प्रीलिम्स पार योजना ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे टॉपिक्स, 55 टॉपिक्स मैंने यहां पर कवर करे हैं. अगेन प्रीलिम्स पार योजना की पूरी एक कंसोलिडेटेड पीडीएफ बना दी है. ये पीडीएफ भी आपको कल टेलीग्राम पे सुबह मिल जाएगी. पूरा करंट अफेयर्स डोजियर आपको कल सुबह टेलीग्राम पे मिलेगा. पूरी पीडीएफ, सारे टॉपिक्स यहां पे मैंने कंसोलिडेट कर दिए हैं. 1-1 मिनट की वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पे, या तो एक साथ जाके देख लो एंड साथ में पीडीएफ को रिवाइज कर लो. नाउ there are few topics जिन पर मैं वीडियो नहीं बना पाया था because I was not getting time to create a lot of content. So there are approximately 25 topics which I have covered through a series called Pre-Ready on my Telegram channel. Every day I used to post it, every next day, and what I have done is I have consolidated all the pre-readies into this one document. क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या ये टॉपिक्स थे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे करंट अफेयर्स से रिलेट करते हैं, पूरा एक डॉक्यूमेंट बना दिया है. ये भी आपको कल आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. सो प्रीलिम्स पार योजना, प्री रेडी, करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट, ये ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है. ये सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. उसके बाद ये 2 क्लासेस बची हैं. अगर आप अगले 1 हफ्ते में पूरा टारगेट लेके ये 3 पीडीएफ्स कंप्लीट कर लेते हो और फिर मेरे साथ इस संडे जुड़ते हो और इस संडे अगले संडे जुड़ते हो, आपके करंट अफेयर्स अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूंगा 80% हो जाएंगे. कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है? सो ये चीजें हैं. सबसे पहले करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट, प्रीलिम्स पार योजना, प्री और प्री रेडी, 3 पीडीएफ हैं आपके पास. ठीक है? एंड 2 लेक्चर्स अभी आने हैं आगे. ठीक है? देन यू हैव द प्रीलिम्स चीट शीट्स एंड पंचामृत टेस्ट सीरीज. ये दोनों हमारा पेड कंटेंट का पार्ट है. अगर आप देखोगे पीपीवाई जो प्रीलिम्स चीट शीट्स हैं, प्रीलिम्स चीट शीट वो ये है. These are a set of topics which I used to give as a part of our main CAP course every week. So this is approximately 118 pages. बहुत सारे मिनी प्रीलिम्स रेलेवेंट ब्यूटीफुली डिजाइंड ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हुए हैं. ये पूरा एक डॉक्यूमेंट और है. दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर करंट अफेयर्स पंचायत नोट्स ओनली. वैसे तो उस कोर्स का जो कॉस्ट है दैट इज 999 फॉर ऑल द नोट्स, जिसमें मेंस के भी आते हैं, मेंस के थीम्स एंड ऑल द एडिटोरियल्स के माइंड मैप्स एंड एवरीथिंग. एंड उसमें एक कंपोनेंट होता है प्रीलिम्स चीट शीट, दिस 118 पेजेस डॉक्यूमेंट, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग एज अ पार्ट ऑफ आवर पेड इनिशिएटिव was our पंचामृत टेस्ट सीरीज. पंचामृत टेस्ट सीरीज वो 500 क्वेश्चंस जिसमें मेजॉरिटी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अगर आप इन तीनों के बाद ये दोनों और कर लेते हैं तो आपका पूरा काम डन हो जाएगा.
आप प्रीलिम्स चीट शीट्स की पीडीएफ और पढ़ लें और ये 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, डन है। नाउ प्रीलिम्स चीट शीट, जैसा कि मैंने बोला, इट इज अ पार्ट ऑफ द नोट्स कोर्स विच इज 999 एंड दिस इज सेपरेटली अवेलेबल फॉर 999। बट नाउ आई नो, मैं कोई यहां पर ज्यादा सेलिंग वेलिंग कुछ नहीं करूंगा, एग्जाम बहुत पास आ गया है, मैंने एक बड़ा सिंपल काम किया है, आई हैव कंबाइंड बोथ ऑफ देम। If you are purchasing the prelims test series right now, you are getting the prelims cheat sheets along with it. Only the prelims cheat sheets, not the mains material, which is a part of our current affairs course. So you can buy the prelims Panchamrit test series and you'll get the prelims cheat sheets along with it. वहीं पर हमने अपलोड कर दी है, ठीक है, पूरी 118 पेज की पीडीएफ। अब प्रीलिम्स जो पंचामृत टेस्ट सीरीज है उस पे भी हमने अब लास्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए एक और ऑफर निकाला है जी। लास्ट 50 कोड यूज करके यू कैन गेट अ 50% ऑफ एप्स कंप्लीटली। मतलब जो 2000 की चीज है टोटल, यू कैन गेट इट एट 500 रुपीज ओनली। दैट इज इट, लास्ट है बिल्कुल। मुझे पता है आपके 20 दिन बचे हैं, मेरे को भी कोई इतना स्ट्रेस नहीं है इसमें भाई। ये अलग से 999 का आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, दिस इज अलग से 999। यू कैन अवेल द पंचामृत टेस्ट सीरीज, आपको प्रीलिम्स चीट शीट्स उसी में मिल जाएंगी। पंचामृत टेस्ट सीरीज का कॉस्ट 999 था, उसमें आप लास्ट 50 कोड यूज करो, 50 और स्टूडेंट्स को हम लोग 50% ऑफ, कंप्लीट 50% ऑफ। ये तो हमने आज तक सेल नहीं किया इतना चीप पर इसको। इन 500 रुपीज यू विल गेट द टेस्ट सीरीज एंड द प्रीलिम्स चीट शीट्स एज वेल। एंड यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज अ अगर आपको लगता है कि मैंने इन 3 इनिशिएटिव्स में बहुत मेहनत करी है, देन इट इज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ऑल्सो, ठीक है। अब हम इसको फ्री में नहीं दे सकते बिकॉज जिन लोगों ने इसके लिए पे किया है वो उनके साथ अनफेयर होगा। अदरवाइज आई वुड लव टू हैव गिव अ कंप्लीट पैकेज ऑफ करंट अफेयर्स, बट आई एम वेरी श्योर कि इतना मटीरियल अगर आप कर लो करंट अफेयर्स का, 1 पीडीएफ, 2 पीडीएफ, 3 पीडीएफ, 4 पीडीएफ एंड 500 क्वेश्चन, भैया करंट अफेयर में इससे बाहर तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये आई कैन गारंटी, राइट। अच्छा, अब ये भी इनफ नहीं है, इसके बाद आप बोलते हैं दैट आपको स्टैटिक पढ़ना है, लेकिन अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, स्टैटिक इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। अ लॉट ऑफ स्टैटिक टॉपिक्स यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम द क्या कहते हैं करंट अफेयर्स का रेफरेंस। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव बिल्ट दिस स्टैटिक लिंकेज शीट, ठीक है। स्टैटिक लिंकेज शीट में मैंने क्या किया है, जरा ध्यान से सुनो, फिर मैं सारे डाउट्स लेता हूं। मैंने जब लास्ट के 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़े तो मुझे कुछ पैटर्न्स दिखे, मैंने उन पैटर्न्स को समराइज करा है। जो मुझे समझ आता है, आउट ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स, दीज आर द टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन इस साल आना ही आना है। पॉलिटी, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, एफडी। अब भैया इतना बता दिया, ये तो इतना देखो हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं और ज्यादा स्पेसिफिक भी बता सकता हूं। इफ यू वांट टू गेट मोर स्पेसिफिक, आर्टिकल 14, 15, दिस इज नॉट 15 अगेन, दिस इज 16, 19, 29, 30, 31 ABC एंड प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस। टेरिटरी पे क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिकल 1 to 4, पर्टिकुलरली सीड करने में क्या होता है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पे क्वेश्चन आएगा, पर्टिकुलरली पार्डनिंग पावर्स पे फोकस कर सकते हो। जुडिशरी पे क्वेश्चन आएगा, आना ही आना है, अपॉइंटमेंट एंड इंपीचमेंट पे फोकस कर सकते हो। और इलेक्शंस पे क्वेश्चन आएगा, इलेक्शन कमिश्नर की प्रोविजंस पर फोकस कर सकते हो। इकोनॉमी की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी और मनी सप्लाई पे क्वेश्चन आना ही आना है। रेगुलेटिंग बॉडीज, इनमें से किसी एक पर क्वेश्चन लग रहा है मुझे आएगा। एक्सचेंज रेट पे क्वेश्चन आएगा, पर्टिकुलरली इन रेफरेंस टू के फेडेक्स क्या करता है तो यहां पर क्या इफेक्ट होता है। टेपर टेंट्रम का कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आएगा, फूड इन्फ्लेशन इन पर्टिकुलर। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, जो चीज यहां पर बोल्ड है उसका मैं फ्री कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप देखोगे, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का सारे नोट्स इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है और मैंने क्लासेस भी ली हैं, उसकी 3 पूरे लेक्चर्स हैं। इन्वायरमेंट की बात करें, रियो कन्वेंशन जो हुई थी, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यूएनसीसीडी टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड यूएनसीबीडी, तीनों पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं किसी एक पे। और इनकी जितनी हिस्ट्री रही है, कोई भी इन्वायरमेंट की स्टैंडर्ड बुक में जाओ, आपको ये पूरी कन्वेंशंस की सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। प्लास्टिक पोल्यूशन पे क्वेश्चन आने के भारी चांसेस हैं, इसको मैं ऑलरेडी करंट अफेयर्स में भी कवर करा चुका हूं। न्यूक्लियर एनर्जी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, न्यूक्लियर एनर्जी पे पूरा डॉक्यूमेंट मैंने आपको बना के दिया हुआ है।
स्पीशीज पर क्वेश्चन आना है। मैंने एक 50 रुपीज की एक पीडीएफ है जो हमारे लिए मानसी ने कंपाइल करी थी, जिन्होंने अभी इंटरव्यू भी दिया था यूपीएससी का। सो शी कंपाइल्ड इट फॉर अस, राइट, एंड दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट इट एट अ नॉमिनल चार्ज। ठीक है, तो हमने उसको एक चार्जेबल बेसिस पे, उस पर बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। वो 57 पेजेस की अप्रोक्सीमेटली पीडीएफ है, तो वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। देन यू हैव द रामसर साइट्स, टाइगर रिजर्व्स एंड द नेशनल पार्क्स। ये तो आने ही आने हैं, तीनों में से कोई एक आएगा। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी टाइगर रिजर्व्स की लग रही है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें, साइक्लोन्स एंड जेट स्ट्रीम्स, नंबर 1 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन पर्टिकुलर। प्लेट टेक्टोनिक्स में अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स पे फोकस जरूर रखना। लैंडस्लाइड्स अगर आप देखोगे, आपके ज्योग्राफी में एक चैप्टर है जहां मास मूवमेंट्स डिस्कस करी गई हैं, वो पैराग्राफ जरूर पढ़ के जाना। ग्लेशियर और ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स पे मैं तो पूरा यहां तक भरे बैठा हूं कि क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, सारे जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स है उनको एक बार देख लेना। मिनरल्स पे क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने पूरी पीडीएफ फ्री में बनाकर टेलीग्राम पर अपलोड कर रखी है, सारे क्रिटिकल मिनरल्स, इंडिया की मिनरल पॉलिसी, सब कुछ। एग्रीकल्चर अगेन पूरी कंबाइंड पीडीएफ मैंने बना के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है, पूरा एग्रीकल्चर इन डिटेल सब कुछ। साइंस एंड टेक की बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी, अब ये बहुत ब्रॉड है, लेकिन जितने करंट अफेयर में कॉन्सेप्ट्स हैं वो, प्लस अगर मन करे तो इसरो की वेबसाइट देख जाना। डिफेंस टेक्नोलॉजी अगेन करंट अफेयर बेस्ड, ठीक है, बट मिसाइल टेक्नोलॉजी और जो आपकी ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको, उनका थोड़ा फ्यूजन करके वो देख लेना। बायोटेक में डीएनए और माइक्रो आरएनए पे फोकस रहेगा, और डिजीजेस, इसकी भी एक फ्री पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। भाई साहब ये आपके, अगर आप देखो 24 टॉपिक्स मैंने और लिस्ट कर दिए हैं जो मुझे करंट अफेयर के बेसिस पे लगता है कि स्टैटिक से आएंगे। आपको ये सब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पे मिल जाएंगे, इनको जरूर प्रिपेयर करके जाना। सो नाउ इफ वी कंक्लूड, करंट अफेयर डोजियर में यू हैव द करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट, प्रीलिम्स पार योजना, प्री रेडी, prelims cheat sheets and Panchamrit test series which are on a chargeable basis. 500 rupees you get both. high yield static linkage topics, उसकी पीडीएफ भी कल अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा आज का लेक्चर और आने वाले क्या कहते हैं 2 संडेज आपके अपडेशन ऑफ द पास्ट 4 मंथ्स डन एंड डस्टेड। इससे बाहर और इससे स्ट्रक्चर्ड तरीके से भाई मुझे नहीं लगता और कुछ आ सकता है। मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता है दोस्त, जितना भी हो सकता है ना, वो सब झोंक दिया है। अब अगर इसमें नहीं आया ना तो आपका नहीं, मेरा फेलियर है। ठीक है, मैं खुद एक्सेप्ट करूंगा कि यार अगर इससे भी बाहर कोई चीजें आती हैं तो इट्स माय फेलियर, नॉट योर फेलियर। ठीक है, तो आई डिड ऑल आई कुड। ठीक है, एंड अभी मैं क्वेश्चंस लेता हूं। ठीक है, सो या दैट इज व्हाट आई कुड कम अप विद। इसी के साथ में आज के लेक्चर में थोड़ा सा भाई मेरे साथ आज बनना पड़ेगा तुम्हें। आई विल ऑल्सो रिवाइज सारा का सारा मैपिंग पॉइंट्स। तो अभी हम पहले मैपिंग करेंगे फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर, सारी मैपिंग जितनी आज तक करी है सब रिवाइज कर देंगे। देन जो और टॉपिक्स है नवंबर दिसंबर के वो करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है बट मजा आएगा, और ये आखिरी एफर्ट है यार। लाइक यू नो, जस्ट डू एवरीथिंग राइट नाउ। ये जो टाइम है, अब इस टाइम पे सोचो मत कि क्या कितनी मेहनत करनी है, कितनी नहीं करनी, कितने घंटे लगाने हैं नहीं लगाने, झोंक दो अपने आप को। ठीक है, सो या अब बताओ कोई डाउट है इसमें तो मैं तुम्हारे डाउट का जवाब देता हूं। डिडंट फाइंड चीट शीट्स ऑन द वेबसाइट। चीट शीट सौरभ आपको एक कोर्स मिलेगा करंट अफेयर पंचायत ओनली नोट्स, उसका पार्ट है। लेकिन अगर आप पंचामृत टेस्ट सीरीज में एनरोल करोगे तो जब आप टेस्ट सीरीज के डैशबोर्ड में जाओगे तो कल आपको ये प्रीलिम्स चीट शीट्स वहां पर एज अ पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है सलोनी, आई होप आपका क्वेश्चन का आपको आंसर मिला होगा। अगर आप ये कर पाते हो, 2 घंटा दिन में बैठो और ये सब करना इस ऑर्डर में शुरू करो, 20 दिन 40 घंटे में सब कवर हो सकता है। सर मैंने पंचामृत जब लॉन्च हुआ था तब से परचेज किया है, चीट शीट में बिल्कुल मिलेगी। जिन्होंने ऑलरेडी पंचामृत टेस्ट सीरीज को एनरोल कर रखा है उनको भी मिलेगी। आपके डैशबोर्ड में कल पीडीएफ आपको दिख जाएगी। ठीक है, और बताओ टेस्ट सीरीज। अच्छा आपने सलोनी टेस्ट सीरीज ले ली, लास्ट 50 ये कोड यूज करना, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। जो 2000 रुपीज की वैल्यू है आपको 500 रुपीज में मिल जाएगी। बिल्कुल एंजॉय करो भाई। ठीक है, 499 में एग्जैक्टली। और बताओ कोई डाउट है इसको लेके, वरना हम स्टार्ट करें फिर। आज मैपिंग से स्टार्ट करेंगे भाई,
मजा ही आने वाला है, पूरी दुनिया कवर करने वाले हैं। देखो करण, जितने स्कीमेटिक्स है ना हमारे जो कैप के पार्ट है, उनके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे के सारे इसमें ऐड कर दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन सा कोड है सर? कोड है लास्ट 50। लास्ट 50, ठीक है। कैप ऑलरेडी मैंने कंबाइन कर दिया है श्रेया, आपको नहीं कराना। कैप के जो स्टूडेंट्स हैं आपके लिए मेंस पे अलग फोकस होगा। प्रीलिम्स के लिए कैप में जितनी चीजें थी वो मैंने सब एक्सट्रैक्ट करके इन्हीं के अंदर इंक्लूड कर दिया। यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग एल्स। जो मेंस थीमेटिक फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं आपने जो पढ़े थे उतना ही ठीक है। उसके अलावा मैं आपको मेंस, जब आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो मेंस में फिर जो मेंस का मटेरियल है वो कराऊंगा, ठीक है। और बताओ, 1-2 मिनट और मैं ले रहा हूं, उसके बाद अपना मैपिंग को स्टार्ट करते हैं। बड़ा बहुत ही मैं एक्साइटेड हूं मैपिंग के लिए। तो निशे, व्हाट आर यू लाइक आस्किंग? प्री रेडी पीडीएफ कौन सी है भाई? प्री रेडी अगर आप देख रहे होगे, आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करते हो, मैं काफी दिनों से टेलीग्राम पे ये प्री रेडी करके सीरीज डाल रहा था। ये टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो मैं शेयर कर रहा था, उनका एक कंपाइलेशन बना दिया है मैंने, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूं, ये आपको कल मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जो मैं मार्क कर रहा हूं। ये टेलीग्राम पे कल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये दोनों आपको परचेज करने हैं, और ये भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बस, ठीक है। ये 1 2 3 और ये लास्ट का 4, ये 4 पीडीएफ आपको कल सुबह टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। प्रीलिम्स चीट शीट्स जो कि ये हैं, जो ये वाले हमारे, जो हमारा पेड कंटेंट है उसका पार्ट है ये पीपी प्रीलिम्स चीट शीट्स। इनकी पीडीएफ आपको पंचामृत टेस्ट सीरीज कोर्स जब आप लोगे, ये टेस्ट सीरीज बाय करोगे, उसमें मिल जाएंगी। हाँ, नोट्स ओनली कोर्स में मेंस के नोट्स भी है। नोट्स ओनली कोर्स में जो 999 है उसमें प्रीलिम्स चीट शीट्स और मेंस के नोट्स और एडिटोरियल के माइंड मैप्स, उसमें सब कुछ है, उसमें हर चीज है। ठीक है जी, चलो बस, और क्वेश्चन नहीं। अब कोई दिक्कत होगी तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। वेबसाइट पे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहां व्हाट्सएप करोगे, निकुंज विल पिक द कॉल एंड ही विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलो जी, ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं। अब ये सब हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको कल भाई समझ आ गया ना, सब चीजें समझ आ गई, बढ़िया प्रोग्राम एकदम सेट है। अब 2 घंटे दिन के लगाओ और इसमें लग जाओ, इसको इस ऑर्डर में करने के लिए। करंट अफेयर कॉन्सेप्ट फॉलो करो, प्रीलिम्स, और जिसमें दम है ना तुम में, इस हफ्ते अगले संडे से पहले दोस्त ये 3 पीडीएफ मेरे को खत्म करके लाना। अगर तुम अगले संडे तक ये 3 पीडीएफ उड़ा दिए तुमने, तो फिर मेरे से मिलना संडे को और देखो क्या मजा आएगा। ये 3 पीडीएफ का चैलेंज दे रहा हूं मैं। इफ यू कैन कंप्लीट दीज 3 पीडीएफ बाय नेक्स्ट संडे, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ योर कंपटीशन। उसके बाद ये 2 क्लासेस मेरे साथ अटेंड करो। जो नेक्स्ट 2 आपके वीक्स आएंगे, कंप्लीट द प्रीलिम्स चीट शीट्स, अटेम्प्ट द 5 क्वेश्चन पेपर्स, आपको 5 फुल लेंथ मॉक दो, अपना बढ़िया से अपनी तैयारी करो, और साथ में इसका रेफरेंस लेके स्टैटिक टॉपिक्स पर फोकस करो। डन। ये 5, ये अपना काम करना है, ये 6 चीजें करनी है, एंड दैट इज इट। ठीक है, चलो जी, ये प्रीलिम्स चीट शीट थी, स्टैटिक लिंकेज था, ये सब हो गया। अब आ जाओ भाई यहां पर बात करते हैं। बढ़िया, तैयार हो फिर? लेट्स स्टार्ट द मैपिंग। हाँ जी, बहुत बढ़िया, पूरी मैपिंग होगी शुरू से लेके लास्ट तक, एकदम मजा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमारा फोकस होगा वेस्ट एशिया पे। और देखो, जब आपको करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट के कंबाइंड नोट्स मिलेंगे ना, तो वो ऑर्डर में नहीं मिलेंगे। आई हैव कंपाइल्ड देम एंड आई हैव केप्ट ऑल द टॉपिक्स टुगेदर। अगर वेस्ट एशिया की फिर जितनी न्यूज हैं वो मैंने एक साथ कर दी है। तो ये मत सोचना ये ऊपर नीचे कैसे हो गए हैं, इट इज बिकॉज मैंने उनको टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में कन्वीनियंस हो कि वेस्ट एशिया का एक टॉपिक अब आ रहा है फिर 10 पेज बाद आ रहा है, तो ऐसा नहीं, सारा एक जगह कर दिया है। ठीक है भाई, बहुत पिछले 2-3 रातों से मैं इसी में लगा हुआ हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जितनी मेहनत मैंने अभी करी है ना, उतनी तो मैंने कभी नहीं करी अपने अपने पढ़ने के लिए, राइट। सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ, कि भाई जो जितना कन्वीनियंट हो सकता है आप लोगों के लिए करो, राइट। तो भाई आई होप, बस मैं भी चाहता हूं कि आपका फायदा हो इस बार इससे एग्जाम में, तब मजा आएगा असली तो, कि 25 को भाई तब पार्टी करेंगे कि भाई क्वेश्चन आए और डायरेक्टली आए, ठीक है। तब मेरे को वो खुशी मिलेगी कि यार कुछ करा है भाई लाइफ में, ठीक है। चलो, एनीवेज, लेट अस बिगिन विद वेस्ट एशिया।
थोड़ा सा तेज चलेंगे बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट हाँ ठीक है. सो यू नो द कंट्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरफ आपका यहाँ रेड सी है, ठीक है, यहाँ पर्शियन गल्फ है. अब यू नो द बेसिक कंट्री, सऊदी यहाँ पर है, इराक यहाँ पर है, इधर टिप पे कुवैत है, देन यू हैव द ईरान, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, ये सब बातें हमें मालूम है. रेड सी है, ये है. इंपॉर्टेंट बातें जो हमेशा से यहां पर इंपॉर्टेंट रही हैं वो क्या है? वो ये है दैट फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर गल्फ ऑफ अदेन, बब अल मंडेब स्ट्रेट. हाँ जी, एक तरफ यहां पर गल्फ ऑफ अदेन एंड बब अल मंडेब स्ट्रेट, एंड इधर गल्फ ऑफ ओमान. इजी टू रिमेंबर, यू नो ओमान यहां पर है तो गल्फ ऑफ ओमान यहां पर ही है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ऑलवेज इन न्यूज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, पर्शियन गल्फ, ये बात हमको मालूम होनी चाहिए. गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यहां ये बदतमीज किस्म के लोग, और अपना यहां ईरान. ठीक है, गल्फ ऑफ अदेन, बब अल मंडेब स्ट्रेट, एंटर रेड सी. रेड सी से आगे जाएंगे. हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस वन नंबर 1 और नंबर 2. नंबर 1 नंबर 2, गल्फ ऑफ अकाबा कौन सा है, नंबर 1 या नंबर 2? गल्फ ऑफ अकाबा 2, बहुत बढ़िया. और अगर हम गल्फ ऑफ अकाबा पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, यू नो कौन कौन से कंट्रीज गल्फ ऑफ अकाबा पे बॉर्डर शेयर करती हैं? सऊदी, हाँ जी, जॉर्डन, इजराइल एंड इजिप्ट. चारों नेशंस के नाम याद रखने हैं. जॉर्डन भूल जाते हैं, जॉर्डन भूल जाते हैं, इजराइल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर आकर एक कंट्री मिल रही है या दो. सऊदी, इजिप्ट, इजराइल एंड जॉर्डन. वेरी इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ अकाबा. हाँ जी, गल्फ ऑफ सुएज. यहां पर आप इस लेक का नाम भी याद रख सकते हैं, ग्रेट बिटर लेक, स्विस कैनाल के पास, ग्रेट बिटर लेक. अगर आपको याद हो, मैंने पनामा कैनाल, उधर भी एक लेक आपको बताई है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी. अच्छा, अब नहीं, जॉर्डन उस्मा मेडिटेरेनियन से बहुत दूर है. ये देखो, ये जॉर्डन यहां पे एंड हो गया, कैतून, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So first of all, you need to remember the basic countries: Red Sea, Persian Gulf, Strait of Hormuz, Gulf of Oman, Gulf of Aden. यहां पर आप आओगे इधर, then you have the Gulf of Aqaba, Gulf of Suez. ये बातें हमको याद रहती हैं, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा. Now, ये यहाँ की मेजर ज्योग्राफी थी, इसको दिमाग में बना लो. गल्फ ऑफ अकाबा पे फोकस रहना चाहिए. अब करंट अफेयर में क्या था, लेट अस सी. अभी प्रैक्टिस करेंगे. Syrian crisis was in news. So now we pick Syria. Like the way UPSC asked question on Ukraine, they might ask you the bordering nations of Syria. So you have to remember Turkey, Lebanon, then Israel, Jordan and Iraq. रट्टा मारो, जैसे मर्जी मारो, ठीक है, ठीक है, कैसे भी मारो, पर मारो. लिज्जित, पूजा ने बोला है लिज्जित, लिज्जित करके आप याद कर सकते हो. कोई और निमोनिक किसी ने बनाया हो तो शेयर कर सकते हैं. निमोनिक्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं मेमोराइजेशन में. सो सीरिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज पहले मालूम होनी चाहिए, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सीरिया न्यूज में था. सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है. अच्छा, देन देर आर फ्यू टाउन्स इन सीरिया जिनके नाम याद होने चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था अफरीन, इदलिब, अलेपो, अलबाब, और ये भले ही दो छोड़ सकते हो. लेक असद आपको याद ही रहेगा क्योंकि आपको मालूम है, ठीक है. लेकिन हाँ, अलीपो, इदलिब, ये दोनों तो याद होनी ही होनी चाहिए, ठीक है. अच्छा, ओके. नाउ अब एक बात अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने बड़ी कसम खाई थी कि भाई ये आना ही आना है. 3 बातें हैं जो सीरियन क्राइसिस में बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी क्रेजी हैं. एक तो है रशिया का नेवल बेस. कौन सा है? टार्टस, लताकिया प्रोविंस में टार्टस नेवल बेस. याद है ना, रशिया का नेवल बेस मैंने पढ़ाया था, टार्टस, याद रखना है. अच्छा, रुकबान कैंप, रुकबान कैंप, हाँ जी, रुकबान कैंप. सीरिया एंड कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है रुकबान कैंप? किसके बॉर्डर पे है? जॉर्डन, बिल्कुल. रेफ्यूजी कैंप यूपीएससी को आदत है पूछने की. जॉर्डन, रुकबान कैंप. अल तन्फ यूएस मिलिट्री बेस, अल तन्फ यूएस मिलिट्री बेस, एंड यहां पर टार्टस रशियन नेवल बेस. ठीक है, इस बात को याद रखेंगे. अच्छा, थोड़ा सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पे अगर जूम करें तो 2 बातें याद रखनी है. एक, यहां पर है आपका गोलान हाइट्स, गोलान हाइट्स जिसको ऑक्यूपाइड बोलते हैं, बट ठीक है, गोलान हाइट्स, एंड सी ऑफ गलीली.
सी ऑफ गलीली, इजराइल इस तरफ है, यहां पर आपका गोलान हाइट्स है, सी ऑफ गलीली, नीचे यहां पर जॉर्डन है। ठीक है, इस बात को याद रखना है, यस या नो? ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो सीरिया में सबसे पहले सीरिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज, सीरिया के अंदर कुछ सिटीज, देन अल तनफ, उसके साथ में टाटस एंड उसके साथ में रुकबान, उसके बाद गोलान हाइट्स एंड सी ऑफ गलीली। ऐसे करके याद कर लो, सीरियन क्राइसिस, सीरिया की सारी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जो लिजिट आपने याद कर लिया। ठीक है, नीचे आ गए सीरिया के अंदर कुछ कुछ सिटीज, अलीपो, इदलिब, याद रहेगा। फिर नीचे चले गए टाटस naval base, then you have your Rukban camp, Al Tanf, and then obviously you have the Golan Heights and Sea of Galilee. ठीक है, then Israel was in news. Two very important things: Netzarim corridor, Netzarim corridor and Philadelphia corridor, Philadelphia corridor and Netzarim corridor. ये दो कॉरिडोर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिलाडेल्फी कॉरिडोर को अगर देखोगे तो ये एक डीमिलिटराइज्ड बफर जोन है। हाँ जी, किसके बीच में है ये? मीटिंग पॉइंट ऑफ गाजा, इजिप्ट एंड इजराइल। ठीक है, एंड यहां पर बीच में कौन सा है? नेत्जरीम। इस बात को याद रखेंगे। यहीं पर आपकी ये सिटी है राफा, जो काफी न्यूज में भी थी। तो इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर। तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहां लिख के दी है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। देन याद है ये क्वेश्चन, ब्लू लाइन, ब्लू लाइन कौन सी दो कंट्रीज? हाँ जी, ए बी सी डी। अभी भी गलत बोल रहे हैं कुछ लोग। सी, इजराइल एंड लेबनान। यहां पर ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजराइल एंड लेबनान के बीच में है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन पे बैठी है यूएन की फोर्स, और यूएन की वो फोर्स जिसमें मेजॉरिटी लोग इंडियंस भी हैं। यहां पर गोलान हाइट्स का फिर से मेंशन है। और नकबा, नकबा ये वर्ड है, इसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ इन अरेबिक, इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, पूरे वेस्ट एशिया में ये पॉइंट्स थे जो काफी एक्साइटिंग थे मेरे हिसाब से। अब जरा मेरे को फटाफट से, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए जल्दी बताओ, सीरिया कौन सी कंट्री है? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है, अच्छा मेरे को यह बताओ, इराक कौन सी कंट्री है? इराक, बहुत बढ़िया। बब अल मंडेब स्ट्रेट कौन सा है? बब अल मंडेब स्ट्रेट नंबर कौन सा है? बहुत बढ़िया। अच्छा यहां मुझे कौन बताएगा कि लेबनान कहां पर है? लेबनान, एच, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर, एक पॉइंट मैं मार्क करता हूं यहां पर, रुको। एक ये पॉइंट है ग्रीन, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये, अच्छा, और एक पॉइंट है ये। अब जो मैं नंबरिंग कर रहा हूं उसका ध्यान देना है, 1 2 3 एंड 4, ये यहां पे 4। मेरे को बताओ अल तन्फ यूएस मिलिट्री बेस कहां पर है? अच्छा, मेरे को बताओ टाटस कहां पर है? टाटस नेवल बेस। कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा हो गया भाई कंफ्यूजन। 4 कौन बोल रहा है भाई? 4 कैसे बोल रहे हो यार? 4 देखो ना। अच्छा, इसराइल कौन सी कंट्री है? इसराइल, इसराइल कौन सी कंट्री है? एफ। अच्छा, एच कौन है? लेबनन। 4 क्या हुआ फिर? 4 तुम बताओगे 4 क्या है? कौन सी लाइन है 4? बहुत बढ़िया। अब नेत जरीम में कंफ्यूज हो गए? नहीं, नेत जरीम विद इन इसराइल है उस्मा, नेत जरीम इज विद इन। यहां पर देखो नेत जरीम, ये देखो यहां पर नेत जरीम कॉरिडोर। ठीक है, इट कट्स थ्रू इसराइल, बोला मैंने गाजा, इट कट्स थ्रू द गाजा सिटी, नॉट इसराइल, गाजा सिटी। यहां पर है ब्लू लाइन, ब्लू लाइन। ठीक है, ब्लू लाइन ऑन द इसराइल एंड लेबनान बॉर्डर। अच्छा,
अच्छा, रुकबान कैंप कहाँ है? रुकबान कैंप, रुकबान कैंप, बहुत बढ़िया। तो फिर जॉर्डन कौन सी कंट्री हुई? जॉर्डन। अरे ए कौन बोल रहा है? नहीं उस्मा, ए नहीं बोलना, सी हुआ ना। ए सीरिया है, सी जॉर्डन है, उसके बॉर्डर पे है यहां पर रुकबान कैंप। बाय मिस्टेक, कोई नहीं, मिस्टेक नहीं करनी है, भारी मिस्टेक हो जाती है। कुवैत कहां पर है? कुवैत, कुवैत, कुवैत। उस्मा क्या कर रहे हो? के नहीं है कुवैत, जे, यहां इस एज पे। याद है मूवी थी, इराक ने कुवैत पर अटैक किया था, ऊपर इराक है, यहां कुवैत है, जे। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ की ज्योग्राफी कंट्रीज को याद रखना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ है? 1 2 3 4। गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा 1 2 3 4। गल्फ ऑफ ओमान 1 के पास है, 2 के पास है? बहुत बढ़िया, चलो शाबाश। हम्म, ठीक है, डन है। वेस्ट एशिया में ये सारी चीजें, जहां पूरे इस मिडिल ईस्ट में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, सारी हमने ऑलमोस्ट देख ली हैं, कोई ऐसी चीज बची नहीं है। ठीक है, ठीक है, डन है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है ये, इसका आंसर मेरे को फटाफट चैट में बताओ। इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना दोस्त ये, अगर ये डायरेक्टली एग्जाम में दिख गया, ठीक है, तो कमाल हो जाएगा। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करो पूजा, फिर बताता हूं टार्टस की लोकेशन। क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं निशा, गलत आ रहा है, गलत आंसर्स आ रहे हैं। बड़े आराम से बनाया है मैंने ये क्वेश्चन ना। पूरा गायब हो गया है चैट, बिल्कुल गायब है, ए बी सी डी सब चल रहा है चैट में, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अच्छा चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे इजी क्या है यहां पर? सबसे इजी आई थिंक आप लोगों के लिए सी है। सी बताओ, सी कहां है? सी कौन सा है? सी, सी को मैच करो, बच्चों की तरह मैच करते हैं, चलो। सी, सी हुदीज, हुदीज कहां पे है? सबको मालूम है यमन में है, सी है 4। अगर सी 4 है तो भैया सी और डी तो कट गए, सी और डी तो कट गए, तो जिन्होंने भी सी या डी मतलब ओ सॉरी, सी 4, सी 4, हाँ सही सही बोल रहा हूं, सी 4 है, तो सी और डी तो हट गए, क्योंकि यहां तो सी 5 और 3 है। ठीक है, अब ए और बी। अच्छा, हेजबुल्ला द नेक्स्ट इजीएस्ट। डी बताओ क्या है? डी बताओ क्या है? डी हेजबुल्ला क्या है पहले ये बताओ। 1, बहुत बढ़िया, हेजबुल्ला है लेबनान, आपको मालूम है। D1 अरे दोनों में है। अच्छा, अब M23 मिलिशिया, अभी रिसेंटली न्यूज में था, M23 मिलिशिया, M23 मिलिशिया किससे रिलेट करता है? क्या बात है, 3, DRC, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अरे बीबी यहां पे तो 3 है, क्या कर रखा है सर आपने? अब कंफ्यूजन यहां पर हुई थी कि नहीं हुई थी? अल शबाब और हैयत तहरीर अल शाम, कंफ्यूजन हुआ यहां पे? नहीं हुआ? बताओ, हुआ ना? यहीं पर आके फंसे होगे। हाँ, अब यहां पर आपको, यहां पर इसीलिए लाके फंसाया है ताकि एक ही बार में आपके दिमाग में बात फिट हो जाए कि HTS, यही तो बात है। यहां देखो, जब पढ़ा रहा था, देखो देखो देखो, अभी जब पढ़ा रहा था, किसी की नजर अगर पड़ी हो तो देख रहे हो, ये देखो, दिस इज रिलेटेड टू सीरिया। ए इज सीरिया एंड अल शबाब इज सोमालिया। So the question, the answer is A. बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसा क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन तो मैं ऐसे सोचता हूं कि यार भगवान प्लीज इसको एज इट इज उठा के पूछ ले यूपीएससी, मजा आ जाएगा। ठीक है, आप बताओ, डू यू थिंक दिस कैन बी अ पॉसिबल क्वेश्चन? बिकॉज एवरीथिंग वाज इन न्यूज, एवरीथिंग, एंड दे हैव द हैबिट ऑफ आस्किंग सच क्वेश्चंस। अल तनफ, रुकबान, आपको पता है उन्होंने रेफ्यूजी कैंप्स 2023 में पूछे थे।
और कोई टार्टस की लोकेशन पूछ रहा था, तो टार्टस की लोकेशन यहां पर है, मेडिटेरेनियन के पास। अगर यहां सीरिया है, यहां पर, ये यहां पर मेडिटेरेनियन के कोस्ट पे। ठीक है, चलो ठीक है जी। वेस्ट एशिया का ये सारा ड्रामा खत्म हुआ, आगे चलते हैं। अच्छा, वेस्ट एशिया से ही यहां पास में आपको मालूम होगा चाबहार पोर्ट है। मैंने कुछ पोर्ट्स आपको याद कराए थे, कोई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा? इस क्वेश्चन का, बड़ा आसान क्वेश्चन है, एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाता है। हाँ जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, एक चीज सीखो आज, और ऐसी मैं बहुत बार आपको चीजें सिखाने वाला हूं आज। कुछ टॉपिक्स तो इतने इंटरेस्टिंग हैं, आई विल मेक यू सॉल्व द सेम क्वेश्चन ट्वाइस। एक बार आप आंसर दे पाओगे, एक बार नहीं दे पाओगे, शर्त लगा लेना। मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम थे, सिमिलर थे कि नहीं थे? सिमिलर थे कि नहीं थे? यस, बिल्कुल थे। अब यहां पर डेलिबरेटली आपको एक पॉइंट पर लाके कंफ्यूज किया गया, लेकिन यहां पर ग्वादर पाकिस्तान सबको मालूम है। देखो, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो डी हटा दो तो ये कुछ कुछ गवार साउंड करता है, और वो ये है भी। ठीक है, तो ये है ही ये। अगर ये देखो पाकिस्तान, तो ये साउंड भी ऐसा ही करता है, गद्दार गवार सारे नाम ऐसे ही हैं इनके। तो ये पाकिस्तानी है। तो यहां 1C एक ही ऑप्शन है। तो ये नालायकों को एलिमिनेट करो, ऑप्शन से भी और दुनिया से भी, और आंसर पे आ जाओ, सिंपल। ठीक है, तो भाई ये है। उसके बाद हम्बन टोटा, ये सब आपको मालूम ही है, ये भाई इसके बाद इसको देखने की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप यहां पर आंसर्स देखोगे तो 1C 2D 3B 4A 5E ये है, तो आप इसको एक बार देख के रिवाइज कर लेना। आंसर इसका है 1। ऐसे ही यहां पर ये लोकेशन दोबारा थी, ये बलूचिस्तान के रीजन में, जो कि अब वैसे भी आजाद हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कौन सा बलूचिस्तान का रीजन है उसको देख लो एक बार। ठीक है, कहां पर बलूचिस्तान का रीजन फॉल करता है, राइट। तो ये एक मैप मैंने और अटैच कर दिया। ठीक बात है कि नहीं है? तो ये सारा, ये वेस्ट एशिया वाला जो रीजन है, इंडिया के इधर लेफ्ट में आप देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स थे जो मोस्टली न्यूज में थे। क्या आपको ये रिवाइज हो गए? क्या ये याद हो गए? हाँ जी, चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा और इधर उधर। यहां निकलते हैं, चलो यहां आ जाओ। यहां पर आप स्विस कैनाल पे थे, यस या नो? स्विस कैनाल पे आपको पूरी दुनिया ही घुमा रहा हूं मैं, आराम से, टेंशन ना लो। स्विस कैनाल से निकल के आप कहां आ गए थे? यहां पे मेडिटेरेनियन सी में। हाँ जी, यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है मेडिटेरेनियन। इनको बड़ा बड़ा मजा आता है मेडिटेरेनियन से क्वेश्चन पूछने का। कुछ बातें याद रखनी है, यहां पर मैंने कुछ कंट्रीज मार्क करके दी हैं, इनको पढ़ लेना। अच्छा, उसके साथ में यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज लिटिल सीज, एजियन सी, आयोनियन सी, टेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी। और यहां से अगर आप ध्यान से देखो, स्विस से निकलते हैं और इधर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार से बाहर अटलांटिक में, स्विस से यहां अंदर आए, घूमे, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार से बाहर, ये जितने सी आपको दिख रहे हैं, ये एक बार जरूर आपको पढ़ने हैं। एक बार नजर मार लेना कि ये, हाँ, इनका एक बार ईस्ट टू वेस्ट भी देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और इन कंट्रीज के थोड़े थोड़े नाम यहां पर कौन कौन सी हैं, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, कौन कौन से यूरोपियन नेशंस हैं जो बेसिकली बॉर्डर शेयर करते हैं मेडिटेरेनियन के साथ। आपको यहां तो ये इजी है, स्पेन, फ्रांस, इटली, देन यू हैव योर अदर कंट्रीज। यहां पे जितनी भी कंट्रीज हैं एक बार इनको देख लेना, मैंने मार्क कर रही हुई हैं। ठीक है, एक बार इनको जरूर देख लेना। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्नियो, एंड देन मॉन्टेगेरो, अल्बेनिया, ग्रीस, इनको सबको देख लेना एक बार। ठीक है, अच्छा, ये चलो फिर भी मैं कहूंगा कम है चांसेस कि इस तरह का बोरिंग ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनाए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, अगर हम स्विस कैनाल से यहां आते हैं, एक तो इस आइलैंड का नाम मालूम हो, साइप्रस। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर आपको मालूम है ना, टार्टस नेवल बेस यहां पर था। अच्छा, यहां घूमे 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 एजेंसी में गए। अब यहां पर मुझे बताओ, यहां पर ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये बड़ा कमाल है। यहां से इधर जाने की बजाय आप इधर आ जाओ,
ब्लैक सी में। अब जब ब्लैक सी में आओगे ना दोस्त, तो यहां बहुत कमाल की बातें हैं। पहले आपको मिलेगा सी ऑफ मार्मरा। मुझे बताओ कंट्री नंबर ए और बी। ए कंट्री का नाम बताओ। अरे टर्की तो ये है भाई, बी टर्की। ए भी टर्की है क्या? अच्छा, नहीं नहीं, देखो लोग कह रहे हैं जॉर्जिया है, बल्गेरिया बोल दिया। अरे भाई साहब, ये भी टर्की ही है, ठीक है, ये भी टर्की है, जो ग्रीन पार्ट मार्क्ड है। सो सी ऑफ मार्मरा इज विद इन टर्की, दोनों साइड टर्की है। और यहां से आप एंटर करते हैं ब्लैक सी में। ब्लैक सी में बड़ा कहानी है, ये यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट बड़ा चल रहा है। क्रीमिया आपको मालूम होगा, सेवेस्टिपोल पोर्ट है यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट। अब ब्लैक सी के जितनी भी बॉर्डरिंग नेशंस हैं इनको पता होना चाहिए आपको। टर्की, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया। यहां कौन कौन सी रिवर्स आती हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। देन कम हेयर, यू हैव द कैस्पियन सी। बाकू में कुछ हुआ था इस साल? बाकू में, बाकू में कुछ हुआ था क्या? बाकू में, बाकू में सीओपी हुई थी, बिल्कुल। अब यहां पर दो गजब की बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ब्लैक सी में देखें तो ब्लैक सी में यूक्रेन के पास, ठीक है, एक सी ऑफ अजोव है। क्या आपको मालूम है सी ऑफ अजोव की क्या खास बात है? सी ऑफ अजोव की, नहीं करण, उल्टा बोल रहे हो। इट इज वन ऑफ द शैलोएस्ट सी इन द वर्ल्ड, शैलोएस्ट, विद वेरी लो सैलिनिटी, वेरी लो सैलिनिटी, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स आती हैं। ये देखो, सी ऑफ अजोव इज द शैलोएस्ट सी इन द वर्ल्ड, वेरी लो सैलिनिटी एंड हाई अमाउंट ऑफ बायोमास। और ये यूक्रेन के क्राइसिस में न्यूज में है, तो ये बात याद होनी चाहिए। अच्छा, सी ऑफ अजोव है ब्लैक सी में। अब कैस्पियन सी में बॉर्डरिंग नेशन आप रट लेना, देखो ये बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, ये आप पढ़ पाओगे। पर जैसे ब्लैक सी में सी ऑफ अजोव था, कैस्पियन सी में ये है, इसको बोलते हैं काराबगोस्कोल बेसिन। काराबगोस्कोल बेसिन। अब इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात बताओ। ये भी कुछ चीजों को लेके बड़ा बड़ा न्यूज में रहता है। इसकी सैलिनिटी बहुत हाई है, इसको डेड सी ऑफ द यूरोप बोलते हैं दोस्त। काराबगोस्कोल बेसिन, सैलिनिटी ऑफ द लगून इज वेरी हाई कंपेरेबल टू द डेड सी। तो यहां पर कोई वेजिटेशन ही नहीं है, नो मरीन वेजिटेशन। एक तरफ सी ऑफ अजोव में हाई वेजिटेशन है, लो सैलिनिटी है, और यहां पर बिल्कुल उल्टा, लो वेजिटेशन, हाई सैलिनिटी। यूपीएससी का फेवरेट एरिया। दो चीजें पूछो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपोजिट है, एक कैस्पियन सी में है, एक ब्लैक सी में है। दो इतने बढ़िया मैपिंग पॉइंट्स। और क्योंकि बाकू में सीओपी हुई थी, ये पूरा रीजन था वो फोकस में था। कौन कौन सी रिवर आती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो आप पढ़ सकते हो, बट ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। और सी ऑफ मार्मरा विद इन टर्की एंड इट इज रिच इन मार्बल। यहां पर मार्मरा आइलैंड है जिसकी वजह से इसका नाम है, एंड इट इज रिच इन मार्बल। और यहां पर भी देखो प्रॉब्लम हो रही है क्लाइमेट चेंज से, डिग्रेडेशन ऑफ द इकोसिस्टम, वो सारी बातें। ये यूक्रेन में ये रिवर है, इसका नाम याद रख लेना, ब्लैक सी। यूक्रेन में कुछ सिटीज के नाम, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे ये दोनों चीजों पे स्ट्रेस करना था। बाकी ये मैंने, दिस इज समथिंग आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आवर कैप नोट्स ओनली। जब आप हमारा जो करंट अफेयर्स कोर्स है उसमें हम हर मंथ मैपिंग भी पूरी डिटेल में करते हैं, ठीक है। और अब जो हमारा आगे चल के कैप का कोर्स होने वाला है उसमें तो स्पेसिफिकली हर महीने एक मैपिंग का डेडिकेटेड लेक्चर ऑलरेडी प्लान्ड है, ठीक है। चलो ये आप देख लोगे, आई एज्यूम आप कर लोगे। चलो ठीक है। अच्छा, हम मेडिटेरेनियन में थे, यहां से निकलकर, ठीक है, यहां पर बॉस्फोरस स्ट्रेट भी नाम याद रख लेना, इस स्ट्रेट का नाम भी याद रखना, और इसका भी स्ट्रेट का नाम याद रखना। इसका भैया नाम है डार्डेनल स्ट्रेट, ठीक है, इसका नाम भी याद रख लेना। ये दो स्ट्रेट्स हैं,
यहां से एजियन सी से आप सी ऑफ मार्मरा और फिर यहां बॉस्फोरस स्ट्रेट से सीधा ब्लैक सी में। और ब्लैक सी में क्या हो रहा है वो मैंने दिखा दिया। ये सारी कंट्रीज कौन सी हैं? यूरोप के कोस्ट में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, बिकॉज बड़ा डिफिकल्ट है इनको मेमोराइज करना। कर सको तो कर लेना। तो हम मेडिटेरेनियन में आए थे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार से बाहर जा सकते हैं, हम आ गए इधर, हमने ब्लैक सी कैस्पियन सी पूरा देख लिया। अब एक बात करते हैं, यूरोप जाना पसंद करोगे या अफ्रीका जाना पसंद करोगे? पहले तुम बताओ, यूरोप चलें कि अफ्रीका चलें? ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है। अरे अफ्रीका जाके क्या करोगे? अफ्रीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? चलो अफ्रीका चलते हैं। अच्छा, अगर अफ्रीका ही चलना है तो फिर तुम्हें अफ्रीका लेके चलते हैं। लो भैया, अफ्रीका। अफ्रीका की पूरी मैपिंग बना के दी है मैंने, पूरी मैपिंग, कंप्लीट डिटेल, सारी रिवर, सब कुछ, सारी कंट्री कौन सी कहां है, क्या है, सब। देखो, यहां से शुरू किए थे, गल्फ ऑफ अदेन, रेड सी, यहां पर आपसे आए थे, हम आगे चले थे बबल मंडेब स्ट्रेट, सुएज कैनाल से बाहर आए थे, यहां मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन का जो बॉर्डर है अफ्रीका की साइड से, वो कौन सी कंट्रीज शेयर करती हैं? मतलब यहां पर आपका मोरक्को है, अल्जेरिया है, ठीक है, ट्यूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट, ये सबको पता है, ठीक है। ये कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। अफ्रीका में आपको यहां पर एटलस माउंटेन चेन्स मिलेंगी, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको एक बात जो और याद रखनी थी इसमें, कि यहां पर ये सारी रिवर्स हैं, सब तो मैंने बता दिया। ये कंट्रीज के नाम यार मैंने सारे रटवाए थे, लेकिन अभी तो टाइम नहीं है कि सब कुछ याद कर सके। लेकिन हाँ, ये माउंटेन चेन भी याद रख सकते हो, ड्रेकन्सबर्ग, ठीक है, इसको भी याद रख सकते हो। अच्छा, एनीवेज, ये सारी बातें याद करने के बाद, ये यार अब बहुत डिटेल्ड मैप है, इसको अभी तो मैं याद नहीं करा सकता, लेकिन मैंने सब मार्क करके दे दिया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है वो ये है, फोकस यहां पर करना है, जूम। ये है लेक कीवू, लेक कीवू, ठीक है। लेक कीवू के पास दो कंट्रीज हैं, ये रावांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां पर ये सारी भसड़ हो रखी है, ठीक है। M23, या अभी मैंने पढ़ाया था आपको, मिलिशिया, ठीक है, वो लोग यहां पर ऑपरेट करते हैं। आई थिंक मैंने इसको कवर भी किया है, तो यहां पे ही है, आई थिंक यहीं पर है लेक कीवू। अच्छा, मैंने एक डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पे शेयर किया था जहां पर सारे लेक्स थे जो न्यूज में थे, जो डाउन टू अर्थ ने रिलीज किया था, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। एनीवेज, इंपॉर्टेंट एक और बात यह है जो रटनी है, कि भाई अब अफ्रीका में लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन सी हैं, सारी मैंने यहां पर लिख के दे दी है। क्या डीआरसी लैंड लॉक्ड है? बस इतना बता दो। डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नहीं है, नहीं है, यहां पर छोटा सा बॉर्डर शेयर करती है सी से, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, बाकी यार तुम्हें रटना पड़ेगा। मैंने एक बड़ी फनी रील बनाई थी बहुत पहले, उसको आप, उसमें मैंने एक निमोनिक भी बताया था, आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। चलो, ये आप देख लेना, इसको अब दोबारा तो यहां पे रटवा सकते नहीं है। यहां पर एक मगरेब रीजन था, मगरेब रीजन, मगरेब रीजन देखो क्या है। इस रीजन को यहां पर सहारा डेजर्ट और एटलस माउंटेन्स, यहां पर ये अलाई करता है, मगरेब रीजन। मगरेब रीजन में लीबिया, अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, ये सब आते हैं। उसके नीचे है साहेल रीजन, जहां डेजर्ट एक्सपैंड हो रहा है, मॉरिटियाना, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ठीक है, चाड, ये दो रीजन्स हैं जिनको आप एक बार को पढ़ सकते हैं, मगरेब रीजन और साहेल रीजन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है एज फार एज द अफ्रीका मैपिंग इज कंसर्न। उसके अलावा अफ्रीका में, अब देखो, अफ्रीका में या तो सब कुछ याद कर लो, अगर नहीं भी करना तो यहां पर मगरेब रीजन, साहेल रीजन, मेडिटेरेनियन की कंट्रीज, लेक कीवू, लेक कीवू के पास रावंडा, एंड इधर आपका डीआरसी, डीआरसी लैंडलॉक्ड नहीं है। उसके बाद यहां पर ये देख लिया, फिर हमने सारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज देख ली, मगरेब देख लिया, साहेल देख लिया। अब जूम करके नीचे आ जाओ और देखो इस पूरे रीजन में डेजर्ट, सॉरी डेजर्ट कह रहा हूं, ड्रॉट, ड्रॉट आई थी। ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाया था, अगर आपको याद हो। अगर आप देखोगे, इसका आंसर बताओ मेरे को क्या है। हाँ जी, इसका आंसर क्या है? याद होना चाहिए, बिल्कुल सी ऑल। बड़ा कॉमन सी बात है कि यार अगर एक जगह ड्रॉट आएगी, इतनी आपस में चेप हो रखी है कंट्रीज कि कैसे होगा कि सब में ना आए, इतनी पास है, यहां ड्रॉट आएगी, कैसे बचेंगे? जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामिबिया, अंगोला। तो इस रीजन को भी एक बार पढ़ लेना।
अदरवाइज सारी रिवर्स यहाँ पे मैंने मार्क करके दी हैं, कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं आप देख सकते हो, कॉन्गो, नाइजर, सब जाम्बेजी, सब मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं। सिमिलरली यूरोप के केस में भी सब कुछ लिख के दिया था नीचे, ठीक है। अगर आप यूरोप भी देखेंगे यहाँ पर भी बहुत सारी रिवर, डॉन, वोल्गा, दनूबे, सब मेंशन्ड है। तो ये थोड़ा मेहनत आपको इसमें खुद करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने पहले इसको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अफ्रीका में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत चीजें अगर और होंगी तो जनवरी, और जो जनवरी से लेके अप्रैल तक के मंथ्स हैं उसमें कवर करा दूंगा, ठीक है। ये अफ्रीका था, ये सारा मेडिटेरेनियन हो गया, यूरोप हो गया। यूरोप में मैंने ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, 2 बार पढ़ा चुका हूं मैं इसको, कि भाई ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड, आयरलैंड, यूके और आयरलैंड में, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या फर्क है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड है, आयरलैंड एक आइलैंड है। अब आयरलैंड आइलैंड में 2 चीजें हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो एक सेपरेट नेशन है, सोवरेन नेशन है, देन यू हैव नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड यू हैव वेल्स। अगर आप इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला दोगे तो बनता है यूके। यूके एक सोवरेन नेशन है जो ईयू का, हाँ जी, पार्ट नहीं है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ठीक है। यहां पर इंग्लैंड अलग है, वेल्स अलग है, स्कॉटलैंड, और ये कंट्रीज हैं लेकिन सॉवरेनिटी इनकी इंडिविजुअल नहीं है, कंबाइंड है एज यूके, ठीक है। इस पर भी मैंने बड़ा सही क्वेश्चन बनाया था, आपसे सॉल्व भी करवाया था। सॉल्व क्वेश्चंस को करते रहना है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये कुछ रीजन्स थे जो मेरे को आपको बताने थे। बाल्टिक स्टेट्स कौन कौन सी हैं, लिथुआनिया, लतीवा, एस्टोनिया। देन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। देन उसके बाद आपका नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी हैं, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। रटना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रटना पड़ेगा नॉर्डिक, स्कैंडिनेवियन एंड बाल्टिक। उसके साथ में आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा कि भैया बल्कन नेशंस कौन कौन से हैं, और ये डोंकी रूट टू यूरोप भी बोला जाता है, ठीक है। ये देखो बल्कन्स रीजन, ये हमने यहां सारा देखे थे अभी, यहीं पे आपने एड्रियाटिक सी, एजियन सी, ब्लैक सी। तो अब हमने मेडिटेरेनियन के ऊपर यूरोप में जितनी चीजें थी वो देख ली, और नीचे अफ्रीका में जितनी चीजें थी वो भी फटाफट देख ली। सब कुछ डिटेल में है, आपको थोड़ा सा इस पर टाइम लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बढ़िया हो जाएगा काम, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब साउथ अमेरिका, अगेन बहुत बार मैंने सॉल्व करवाया है, इस क्वेश्चन को बताओ, सॉल्व करके बताओ। अभी भी गलत कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया, बी, हाँ हाँ जी, हम्बोल्ट ग्लेशियर, नीचे लिखा है वेनेजुला, अर्जेंटीना नहीं है, एंड इट इज बाय एल नीनो, पढ़ाया हुआ है तभी फटाफट फटाफट कवर करा रहा हूं। फिर एंडीज माउंटेन्स कहां कहां से गुजरते हैं, ये भी मैंने कवर कराया था, इसमें तो मैंने गलती कर दी थी। हाँ जी, ब्राजील से गुजरते हैं कि नहीं गुजरते, हाँ ये मैंने ही गलती करी थी, इसमें कोई मार्किंग गलत थी, नहीं गुजरते, ठीक है। ये सारी मैपिंग अब साउथ अमेरिका की आपको यहां मिल जाएगी, सारी, कौन कौन सी पीक्स हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन सी कहां पर ग्रास हैं, कहां पर क्या है, कौन सा लेक है, सब मिल जाएगा। लेक टिटिका का याद रखना, ठीक है। ये लेक माराकाइबो, इसको याद रखना, ओरिनोको रिवर को याद रखना, ये सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी। पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। मैश्को पीरो पीपल, पेरू से रिलेट करते हैं, ये भी पढ़ाया था। लिथियम ट्राइंगल यहां पर है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एबीसी, एबीसी, बीसीए, कैब, कुछ भी करके याद कर लो, माश्को पीरो। तो ये सारा साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका ही में हमने पनामा कैनाल देखा था, जो यहां पर वाटर जब फ्लो करता है, मैंने आपको बताया था, गटून, गटून लेक है, इससे पानी आता है, वो लेवल करता है शिप्स को। तो पनामा कैनाल की लोकेशन, और साथ में कि यहां पे भैया कौन सा लेक है, गटून लेक, फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक, ये याद रखना था, ठीक है, ठीक है।
पनामा को डिटेल में क्या करोगे यार, पनामा को आपको बस यही याद रखना है कि लोकेशन एक तो यहां पर है और उसी के साथ में गतून लेक याद रखना है, इसमें और ज्यादा डिटेल में कहां जाओगे। ठीक है। अच्छा, फिर व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं व्हाइट गोल्ड? हाँ जी, सी, लिथियम, लिथियम, बहुत बढ़िया। लिथियम, यहां पर ये माइनिंग होती है और यहां पर एक मेथड यूज होता है ब्राइन एक्सट्रैक्शन, पानी को इवेपोरेट करके ब्राइन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। ठीक है जी। तो अगर आप मैप को देखो ध्यान से तो हमने वेस्ट एशिया से शुरू किया, लेफ्ट में हम आए, ऊपर मेडिटेरेनियन, ऊपर गए, इधर आपने ब्लैक सी, कैस्पियन सी पूरा देखा, सी ऑफ अजोव, काराबोगोस्कोल बेसिन, वापस आए, ऊपर यूरोप देखा, नीचे अफ्रीका देखा, जितनी चीजें हैं सब एक साथ कंसोलिडेट कर दी हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट रीजन और हैं आपके, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में मैंने आपको 3 आइलैंड्स पढ़ाए थे, पैरासेल आइलैंड्स, स्कारबोरो शोल एंड स्प्रैटली आइलैंड्स। 3 आइलैंड्स हैं ये ट्राइंगल। ये सारी कंट्रीज कौन कौन सी कहां पर है, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, चाइना, सब पढ़ाया था। इस क्वेश्चन का आंसर देना, इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, सेन काकू। ठीक है। अच्छा, एक बार बताओगे मेरे को, एक बार बताओगे ए और बी, इसमें से मलेशिया कौन सा है, ए या बी? बोथ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सारी कंट्रीज एक बार प्रैक्टिस कर लेना प्लीज। ठीक है। अच्छा, ओके। एक बात बताना मेरे को, तुम यहां पर कोड के हिसाब से बताना जो मैं कंट्री पूछूं। टेल मी कि यहां पर वियतनाम कौन सा है? ओ सॉरी, वियतनाम कह रहा हूं, फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस बताओ, फिलीपींस, फिलीपींस। ग्रीन। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, ऑरेंज कौन सी कंट्री है? टी ताइवान है, एम मलेशिया है, बी ब्रुनई है, सी चाइना है, पी फिलीपींस है। ताइवान। अच्छा, तो फिर ये ब्लू वाली कौन सी है छोटी सी? ब्रुनई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्रुनई। ठीक है, ये भी तुम्हें याद है, प्रैक्टिस कर लेना। इस पे पूरी पीपीवाई बनी हुई है भैया, पीपीवाई भी बना रखी है मैंने इस पे, तो कहां कहां पे कौन कौन से। हाँ जी, हाँ जी, डाल देंगे राज मनोहर, पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, टेंशन की बात ही मत रखो, और भी बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है जी। ये लो भैया, ये लो। ये सब मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? मिनिकॉय आइलैंड कहां पर है, डियागो गार्शिया, चागोस, आगालेगा, सब कुछ इसमें हमने कवर किया था। ठीक है। अंडमान की मैपिंग मैंने कहा था एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे एक बात बता दा, डंकन पैसेज कौन सा है, ए, सी या बी? डंकन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई ये डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल और सोम्ब्रेरो चैनल, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। अंडमान की पूरी मैपिंग करनी है, 3 चैनल्स हैं, यहां पर मैंने प्रैक्टिस शीट भी है, आप एक बार रिवाइज कर लेना। फिर मैंने आपको बताया था यहां पे कुछ रीजन्स मार्क कराए थे। ठीक है। ये देखो, कोस आइलैंड्स, इसके पास में कारा कनाल एंड सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट ये आपका कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, ये भी इससे रिलेट करता है। ठीक है। ये देखो, सितवे पोर्ट, यहां से आप शिप से जाओगे, फिर आप ट्रेन से जाओगे, मल्टी मॉडल। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, लक्षद्वीप की मैपिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में 9 डिग्री चैनल है और 8 डिग्री चैनल है। अगर मैं आपको बोलूं इंडिया, क्या कहते हैं, लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में कौन सा चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप के आपस में बीच में कौन सा चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल। यहां पे आपका कावाराटी आइलैंड्स हैं या मिनिकॉय आइलैंड्स हैं, बीच में 9 डिग्री चैनल है। ठीक है। अच्छा, फनासी निकेटन सी माउंट, क्या मैंने ये पीपीवाई में कराया था? कोबाल्ट रिच, कोबाल्ट, ऊपर अपने लिथियम देखा था, लिथियम। फनासी निकेटन सी माउंट, कोबाल्ट, ये भी हमने कराया था। डीप ओशन मिशन, काचा तीवू स्टोरी, काचा तीवू आइलैंड,
और यहां पर वेज बैंक एक फिशिंग रीजन, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? और इस सबका कंसोलिडेशन, सारे ग्लोबल चोक पॉइंट्स, ये अब आप मुझे अच्छे से आपको याद हो जाने चाहिए। पनामा कनाल कौन सा है? पनामा कनाल, मलाका स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्रल्टार, बब अल मंडेब स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। क्या बात है, क्या बात है। और देखो बॉस्फोरस स्ट्रेट पढ़ा था, बॉस्फोरस स्ट्रेट फोर्थ। ये सारे स्ट्रेट्स यहां पर आके आप एक बार रिवाइज कर लेना, डन हो जाएंगे। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, सारे ये कुछ पोर्ट्स के नाम हैं। रियाद आप भूल नहीं सकते, जबल अली यूएई, हाइफा भी नहीं भूलते हैं लोग, पता है इजराइल में है। ठीक है, अल हदीता, ठीक है, पायरियस, हराद, और अल गोवा, इसको यार प्रोनाउंस मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, गुवाइवत, गुफाइवत आई थिंक, समथिंग लाइक दैट। इन पोर्ट्स के नाम भी एक बार देख लेना। ठीक है, अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। अब एक बार आगे चलते हैं, ये सारी चीजें अब मिसलिनियस ही हैं, आपको मालूम है ये सारा रीजन अभी मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में शायद कवर कराया था, आपको सब पढ़ना है। एलओसी वर्सेस एलएसी, इसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद आगे चलोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने बताई थी आपको। इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर देना, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। सी, बहुत बढ़िया, इसको मत भूलना। ठीक है जी, अभिरूप, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे कुछ था नहीं, इतना कुछ खास था नहीं इसमें, ऐसा कुछ काल पानी वाला, जो काला पानी वाला ये लोकेशन थी, इसको पता होना चाहिए। लिपू लेक पास एक बार को देख सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, लिपू लेक पास, तो ये देख लेना, इसमें कुछ खास था नहीं। तुंगभद्रा रिवर मैंने आपको बोला था, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, उसको देखना है। रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर, इसको देखना है, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, तीस्ता रिवर ऑब्वियसली देखना है, तीस्ता रिवर की मैपिंग एक बार देख लेना, ये भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी, आपको मालूम है। एससीओ के बारे में पढ़ना है, एससीओ के बारे में, G7 के बारे में। एससीओ के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो नए लोग हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, 1 and 2 ओनली, क्योंकि नो यूरोपियन कंट्रीज अ मेंबर ऐसा नहीं है, बेलारूस बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन मेंबर, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, बिम्स्टेक पढ़ लेना। बिम्स्टेक के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईसीजे वर्सेस आईसीसी के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको पढ़ लेना। भाई ये इंडिविजुअल्स के लिए है, ये स्टेट्स के लिए है, यहां पर सिविल मैटर्स होते हैं या क्रिमिनल मैटर्स हैं, सारी चीजें इसकी देख लेना। इसका इन्फोर्समेंट कैसे होता है, इसका कैसे होता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका भाई ये फाइव आइज अलायंस मैंने पढ़ाया था, इंटरपोल पढ़ाया था, क्वेश्चन भी बनाया था, ये देख लेना। ठीक है जी, भारत पोल देख लेना, कांस ग्रुप देख लेना, डब्ल्यूटीओ के अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सब पढ़ा रखा है, इसी कोर्स में पढ़ाया हुआ है, वीडियोस देखोगे सब समझ आ जाएगा। और उसके बाद सारी डिफेंस रिलेटेड न्यूज कि मिसाइल में, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। K9 वज्रा मैंने पढ़ाया था, इट इज अ व्हाट, हाँ जी, K9 वज्र क्या है, ABCD, बी, बहुत बढ़िया, देखो कितने सही आंसर आ रहे हैं अब। हावित्जर है, ठीक है, डीआरडीओ ने भैया आपका जोरावर टैंक है, इसको देखना था। न्यूक्लियर ट्राइड मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, ये नया टॉपिक है, एक बार इसको पढ़ के बताओ, क्वेश्चन बताओ, ये मैंने अभी ऐड करा है। एक्चुअली जो नवंबर के टॉपिक्स है मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं इसके अंदर। हम्म, इसका आंसर देना। बहुत बढ़िया यार, कौन हेड करता है डीएसी को, डीएसी को कौन हेड करता है, डिफेंस मिनिस्टर। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, ये दोनों हट गए, 1 and 3। इसमें मैंने आपको क्या बताया है, 1 and 3, है ना, क्या रीजन है गलत करने का।
ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में भी पढ़ लेना। उसके अलावा सारी मिसलिनियस न्यूज हैं, ये सारे मैं आपको टॉपिक पढ़ा चुका हूं, ये आपको पता है। क्या कहते हैं, REAIM समिट कहाँ हुआ था आपको मालूम है, साउथ कोरिया सियोल में हुआ था। ये सारी चीजें आपको बता दी है। देखो ये सारी चीजें मैं पहले बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, वेस्ट एशिया मैंने आज भी बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। ये सारे टॉपिक्स हैं मैपिंग के, एक पीडीएफ में कंबाइन हो गए हैं, जो आपको कंबाइंड पीडीएफ मिलेगी पूरे करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट की। उसमें पूरा सेक्शन होगा, उसमें आप इस सारे मैपिंग पॉइंट्स को एक बार आराम से बैठकर रिवाइज कर लेना। ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स हैं। ठीक है जी, समझ आया, मजा आया, बताओ निश, कैसा लगा आपको निश? फिर हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करी है इन लेक्चर्स में। आप वीडियोस जाके अभी भी देख सकते हो अगर आपको समझना है। अगर टाइम कम है, ये पूरी पीडीएफ रिवाइज करने में 2 घंटे से 4 घंटे आपको लगेंगे। 4 घंटे बैठोगे, 2 दिन में ये वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा। लेक्चर इसी कोर्स में अवेलेबल है, आप देखोगे पूरे डैशबोर्ड में सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पर भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, अब दो अब 4 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 4 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आज तो यार मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने फटाफट गो थ्रू कराया है। मुझे जब पढ़ाया था तो आराम आराम से पढ़ाया था, लेकिन जो नवंबर के टॉपिक्स हैं, क्योंकि वो भी पेंडिंग है, तो अभी वो भी करने हैं। तो प्लीज 4 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, 5 मिनट का ले लो, चलो 5 मिनट का ले लो। नवंबर एंड दिसंबर के बाकी टॉपिक्स, और मैं बता रहा हूं भागना मत। आज एक ही क्वेश्चन को दो दो बार सॉल्व करवाऊंगा, दो अलग तरीकों से। यू विल सी हाउ ऑप्शंस आर द वंस दैट मेक द क्वेश्चंस डिफिकल्ट। तो जुड़े रहो ना बिल्कुल। ठीक है, 5 मिनट शुभम, 5 मिनट। चलो भाई, 5 मिनट का ब्रेक है, जुड़ते हैं उसके बाद।
हाँ जी। हो, क्या बातें चल रही हैं भाई चैट में। इंस्टीट्यूशंस की बातें चल रही हैं भैया। कोई नहीं। भाई मैं 3 दिनों से ढंग से बिल्कुल नहीं सोया हूँ। आई मीन ऐसा हाल हो रहा है ना मेरा कि क्या करें। अरे नहीं भाई, अभी अभिषेक अभिषेक नहीं भैया, हम तो यहीं ठीक हैं अपना। हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है भाई। यहीं ठीक है हम। ठीक है भैया, ठीक है। सर सी सैट को क्लियर फॉर दीज लास्ट बताते हैं नेहा भी बताते हैं, क्लास के बाद और डाउट्स लेते हैं। ठीक है। चलो भैया, चलो आगे, चलो आगे चलो। लो भैया, सवाल। अब बड़ा मजा आएगा क्योंकि अब अलग तरीके का काम स्टार्ट होगा हमारा। अब सवालों की झड़ी लग जाएगी और आज आपको कमाल दिखाएंगे। अब मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा बोलेंगे। ये क्या सवाल है भैया, हमें नहीं पता। उस्मा, बहुत बढ़िया। इस बार सही आपका तुक्का लग गया। ठीक है जी, उल्टा कर दिया है हमने। ध्यान से देखो, न्यूज आई थी एयरशिप्स को लेके। एयरशिप्स, ठीक है। एयरशिप्स क्या करते थे भैया, ये यूज करते हैं हाइड्रोजन। चीप है, इजी, लाइटेस्ट है, ठीक है, बट एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है। ओहो, यहां तो लिख दिया हाइड्रोजन नॉन फ्लेमेबल है। और देखो आजकल क्या यूज हो रहा है मॉडर्न एयरशिप्स में, हीलियम। ये भी आप देखोगे, ये देखो, नॉन कंबस्टेबल है बट इट इज कार्स। नॉन कंबस्टेबल है इसलिए कम डेंजरस है, लेकिन ये स्कार्सली अवेलेबल है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया बाबू। हाइड्रोजन का हीलियम में लिख दिया, हीलियम का हाइड्रोजन में लिख दिया, उल्टा कर दिया दोनों को। आंसर हो गया नीदर। यूपीएससी की एक एलिमिनेशन टेक्निक है ये। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, दो गैसेस याद रखना है। अब अगर मैं आपको दुनिया दिखाऊं तो भैया यहां पर अगर मैं इन्वायरमेंट के सेक्शन में जाऊं, इन्वायरमेंट का सेक्शन कहां मिलेगा, इन्वायरमेंट का सेक्शन में जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो जितनी गैसेस हमने पढ़ी है ना दोस्त, सारी एक जगह कर ली है। हमने यहां मीथेन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मीथेन मीथेन। उसके बाद हमने हाइड्रोजन पढ़ा था, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। अब मैंने ये टॉपिक यहीं ऐड कर दिया, देखो। सो अब जितनी गैसेस थी वो आपको एक जगह मिलेगी। तो जब आपको कंसोलिडेटेड पीडीएफ मिलेगी तो सारे टॉपिक्स एक साथ मिलेंगे जो आपस में रिलेट करते हैं, ताकि आप लोग आराम से प्यार से उसको पढ़ सको। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे, लेक इफेक्ट स्नो। ये भैया ध्यान रखना, ये जो आपका ग्रेट लेक रीजन है ना, अमेरिका, ग्रेट लेक्स, वहां पर आपका ये रीजन है, यहां बर्फबारी हो जाती है बहुत ज्यादा। ठंडी हवा आती है, यहाँ वार्म वाटर्स होते हैं, मिलते हैं, माहौल होता है एकदम वेवी, और आती है बर्फ। ग्रेट लेक्स के नाम भी एक बार को पढ़ के जा सकते हो, काम आ जाते हैं। बड़ा ट्रेडिशनल यूपीएससी प्रिपरेशन का पार्ट है, आपके ज्योग्राफी के टीचर आपको रटवाते भी होंगे, पर एक बार पढ़ लेना। बर्फ पड़ती है यहाँ पर, लेक इफेक्ट स्नो, लेक की वजह से आई हुई स्नो, पढ़ लेना। ठीक है, चलो। अब कमाल की बात दिखाता हूं, कमाल का सवाल भी दिखाता हूं। सवाल ये है, देखो, सवाल ये है, जवाब मुझे तुम दो। लो भैया, ये तो आएगा इस बार। जिस तरह से पिछले 3 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये आएगा। हम्म। सेफ्लोपोड्स, अरे सारे ही हैं यार ये तो ऐसे, जो इनमें एक जेटिंग होती है ना, एक तरीके से पुश करके अपने आप को फ्लोट करते हैं, स्विम करते हैं, उस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्क्विड, ऑक्टोपस, कटलफिश, ये सब, ऑल ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ दिस।
और भैया इनके बिहेवियर को यूज करके ना, देखो कमाल की बात क्या है, ये सवाल क्यों आएगा, इनके बिहेवियर को स्टडी करके आप बना रहे हो ये पिल, जो कि आपको हेल्प करेगी इंजेक्शंस को रिप्लेस करने में, कि वो बॉडी में जाए और खट से एब्जॉर्ब हो जाए, जिसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। तो इनके बिहेवियर को देख के आप बना रहे हो ये। और आपको एक और बात बताऊं, यहां पर एंड्स के बिहेवियर को देख के ना, आई थिंक इंडोनेशिया में एक स्टडी हुई थी जहां पर वो क्या कहते हैं, फ्लड से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, कॉलोनी बनाती हैं इस तरह से, शेप्स इस तरह से होती हैं कुछ अजीब सी, तो वाटर क्या होता है आके डाइवर्ट हो जाता है। उनकी कॉलोनीज को स्टडी कर कर आपने फ्लड प्रिवेंशन मैकेनिज्म्स डेवलप करे थे, ये एंड्स की कॉलोनीज को देखकर, एंड्स ANTS, ये भी याद रखना, लिख लेना अगर कहीं पर आपके पास पेन या वो है तो। और यार ये क्लासिफिकेशन भी याद करना, ये ऊपर वाले प्लैंकटन, बीच वाले नेक्टन जो ये घूमते रहते हैं ऐसे, ठीक है, और ये जो नीचे पड़े रहते हैं बेंथोस, ठीक है, ये बैक बेंचर्स, बी से बैक बेंचर्स, इन्हें भी याद कर लेना। वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट, बहुत ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। साइक्लोन्स के अलग अलग क्लासिफिकेशंस होती हैं एज पर देयर स्पीड, जहां पर आपको अब यहां पर ऑल द कंबाइंड नोट्स में जहां मैंने साइक्लोन कवर किया है, मैंने वहीं पर ऐड कर दिया, ठीक किया, नेमिंग ऑफ साइक्लोन हमने पढ़ा था, वहीं पर मैंने इसको ऐड कर दिया, तो आपको एक ही जगह मिलेगा, ठीक है जी। चलो नाउ जस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब बहुत बहुत मजेदार चीज होने वाली है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आराम से सोच के। ठीक है, आपने डी बोल दिया, मैंने मान लिया, ठीक है, एक सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। लेकिन अब जो लोग डी बोल रहे हैं, बढ़िया, आप अब अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन मैं इसमें दिखाना क्या चाहता हूं, यहां पर एक बार को बंदा कंफ्यूज हो सकता है कि यार सेकंड स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। देखो, क्योंकि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट आ गई, लेकिन क्योंकि यहां पर भी सम था तो आपने देखकर उसको एलिमिनेट करके डी कर दिया, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर था। अब जरा इसको अटेम्प्ट करो, ये क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट करो। देखो, वहां पर आपको दोनों में चीजें समझ आ गई, आपने एलिमिनेट कर दिया। अब ये क्वेश्चन करो ध्यान से सोच के। अब आ रहे हैं कंफ्यूजन, ABC सब हो गया है चैट पे, सब हो गया है, सब ऑल ऑल हो गया है चैट में, अब बिल्कुल LOL लॉल हो गया है चैट में। चलो जो भी आप आंसर दे रहे हो, अब इसको करो। अब क्या करोगे, अब मुझे बताओ, एक ही क्वेश्चन है, दो तरह से ऑप्शन आए हैं, आपको ज्यादा डिफिकल्टी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहां हो रही है, पहले टाइप के क्वेश्चन में या सेकंड टाइप में। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, यूपीएससी में जब आप मेंस देने जाओगे ना, मेंस, तो क्या होगा, आपको एक शीट मिलेगी, पहली बात तो अलग से क्वेश्चन पेपर तो मिलता ही है, बाकी आपको एक बुकलेट मिलती है, उस बुकलेट में ही सारे क्वेश्चंस प्रिंटेड होते हैं, आपको स्पेस मिलता है, आपने जो मर्जी लिख के आना है, चाहे आप वहां करण औजला के गाने लिखा हो पर लिख के आओ, लेकिन आपको पूरा स्पेस मिलता है, भैया जो मन में आ रहा है लिख दे। मेंस में आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो,
प्रीलिम्स में आप अपने आप को डिफेंड करते हो, एग्जामिनर सोच के क्वेश्चन बना रहा है कि गलत करे गलत, एक बार तो ये गलत कर दे, आपको टेम्पटेशन होती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, जो क्वेश्चन आपने ये किया, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने इसका पहला पार्ट सॉल्व किया, आपने दोनों ही क्वेश्चन में चैट में झड़ी लग गई डी की। इन बोथ द क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ यू जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं और जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, आपको मन में आया होगा हाँ यार ये दोनों में ही डी आंसर है, आपको सेकंड थॉट आया ही नहीं होगा, यस या नो? आपको एक कॉन्फिडेंस फील हुआ होगा कि आई कैन मार्क दिस क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन में आप यहां पर आके फंसे होगे, आपने टाइम लगाया होगा, आपने एक एक करके क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना शुरू किया होगा, बट उसके बाद भी आप आके फंसे, यस या नो? यस या नो? पहले आप बताओ, सबसे इसमें जो है, सबसे जो आपने स्टेटमेंट सबसे पहले आपने देखा होगा कि हाँ यार कोडो मिलेट इज ग्लूटेन फ्री, ठीक है, 5 सब में ही है। उसके बाद आपने देखा होगा कि यार क्या कहते हैं, कौन सा स्टेटमेंट है, इन इंडिया कोडो मिलेट इज अ स्टेपल फूड फॉर मेनी ट्राइबल, थर्ड स्टेटमेंट, ऑब्वियसली यार कोई तो खाता ही होगा, तो आपने डी एलिमिनेट किया होगा, है ना? अब यहां फंस गए आप, 1 3 5 2 3 4 5 1 3 4 5। अब सेकंड स्टेटमेंट, कोडो मिलेट रिक्वायर्स हाईली फर्टाइल एंड वेल इरिगेटेड सॉइल, एक बार को पता नहीं कि यार सही है कि नहीं, एक बार को दिमाग में आया होगा कि हाँ यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर आपने सोचा होगा यार ठीक है, ये अभी सोचते हैं इसको, 3 तो ठीक है। 4 आपने देखा होगा, इट कैन बी मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन, इट इज मोर सुटेबल फॉर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल। ये वर्ड और ये वर्ड आपके दिमाग में एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हुई, यस या नो? एक इन तीनों वर्ड्स ने आपको कंफ्यूज तो किया होगा कि यार कुछ तो बवाल हो रहा है यहां पर, ठीक है, हल्का फुल्का। अभिरूप आपको नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, गजब, लेकिन जिनको हो रहा है मैं उनसे भी बात कर रहा हूं कि यार दिस इज व्हाट हैपेंस। बट ठीक है, आप फंसे, आपने एलिमिनेशन करी, आप आके रुके। इस क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से देता ना, ठीक है, अब आप क्या करते, आपकी टेम्पटेशन और बढ़ जाती, क्योंकि यहां पर आसान है। अरे कोई ओनली ओनली 4 ही होंगी, ओनली 3 होंगी, एक पता नहीं क्यों अंदर से मन पुश करता है कि कर दे मार्क, देखी जाएगी, ओनली 3 कर देते हैं, 5 में से 3 तो होंगी, 4 तो होंगी। होता है कि नहीं होता तुम्हारे साथ? ये मैं बहुत, आई नो दिस हैपेंस। तो आपकी टेम्पटेशन और बढ़ गई। पर भाई यहां पर अपने आप को रोकना है, until and unless you don't know the answer to this question, don't attempt it। ये वही है जो बुलाती है पर नहीं जाने का, ठीक है, ये वही है। एक शायरी है, हर शाम मोहब्बत, हर शाम मोहब्बत और जहर आपस में शर्त लगाया करते थे, हर शाम मोहब्बत और जहर आपस में शर्त लगाया करते थे कि आज किसने ज्यादा जाने ली, ठीक है। अब इसमें आप यूपीएससी प्रीलिम्स के सवाल भी जोड़ दो, हर शाम यूपीएससी प्रीलिम्स के सवाल मोहब्बत और जहर आपस में शर्त लगाया करते थे कि कितनी जिंदगी किसने बर्बाद की। तो भैया इधर रुक जाना, यहां वो जो चुल होती है ना थोड़ी सी कि भाई चेक कर दे, देखी जाएगी, लगा दे, रोक लेना अपने आप को। पता नहीं अंदर से कौन सा सूडो कॉन्फिडेंस, अपने आप कोई बावला बना रहे होते हैं, अरे 5 है 3 तो सही बनाई होंगी, पता कुछ नहीं हो रहा है लेकिन कर रही हैं। यहां बड़ी जल्दी तुमने बोला था डी 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 डी, सम आ गया भैया, पता है दुनिया भर ने तुक्के लगाने सिखा रखे, हम कर देंगे इसको, यहां फंस गए। भाई फंसाने के लिए बनाए ना क्वेश्चन, इसीलिए फंसे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर पता है तो ठीक है, पता है तो ठीक है, वरना छोड़ दो। अब इसका आंसर वैसे बताना क्या है, जो कोई कंसेंसस आ रहा था, भैया ये हाईली फर्टाइल नहीं होता, पहले तो सेकंड हटाओ। मिलेट्स वैसे ही कोर्स ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, इसको फर्टाइल ग्राउंड ही कैसे भी उग जाती हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन, यस दैट इज ट्रू,
फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इट इज बेस्ट सूटेड फॉर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, इट इज ट्रू. सेकंड इज रॉन्ग. अब हम फंस गए हैं 4-3, इट कैन बी मोर प्रोल. हाँ, तो इसका आंसर है सी, 1-3-4-5. ठीक है. अच्छा, ये आया कहां से था ये टॉपिक? अरे टॉपिक ही उड़ गया क्या? नहीं, वो यहां पर हो गया होगा, सॉरी, एक सेकेंड. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो केशव, एलिफेंट वाला टॉपिक था ये. ये रहा. ठीक है, ये देखो. ओके, ये रहा. ठीक है, या वाइल्ड एनिमल्स की डेथ हुई थी कोडो मिलेट को खा के, जहां पर इन लोगों ने कोडो मिलेट में क्योंकि फंगल पॉइजनिंग हो गई थी, तो इस वजह से इन्होंने एलिफेंट से जब उसे कंज्यूम किया तो उनकी डेथ हो गई. यहां पर सारी बातें लिखी हैं इसके बारे में, एक बार इसको देख लेना, पढ़ लेना. ठीक है, चलो, ये है. ठीक है. अच्छा, तो हमने यहाँ फंगाई भी देख लिया, यहां पर ये भी देख लिया. ठीक है जी. अच्छा, ये सारा आपने देख लिया. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टिपिकल यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन. पढ़ो भाई इसे. भाई करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए. इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है? इन्फेंटिसाइड का मारना बच्चों को. अब क्या है, इन्फेंटिसाइड्स कैन बी ट्रिगर्ड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस. भाई क्यों नहीं हो सकता? है ना, क्यों नहीं हो सकता? तो हार्मोनल इम्बैलेंस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं हुई होगी. अब यहां फंस गए होगे कि मेल टाइगर. हाँ यार, ये बात सुनी है कि नहीं सुनी कि मेल टाइगर्स दे किल आफ्टर ऑब्वियसली अक्वायरिंग द टेरिटरी? यस या नो? यस या नो? बट यहां पे सोचा करो कि आज तक दुनिया के हर जंगल में, हर जगह किसी शेर ने, उसने, टाइगर ने, फीमेल ने अपने न्यूबॉर्न को नहीं मारा होगा. बस एक बार उस प्रेशर सिचुएशन में ये सोचो, और फिर इसका आंसर अब बताओ. क्या आंसर है इसका? हाँ जी, बिल्कुल. अरे हुआ है भाई, जू में हुआ है. सो व्हाट हैपेंड वाज, एक टाइगर, टाइगर जो फीमेल थी, वो उसने अपने कब को अपने माउथ में रख रखा था, और अचानक से एक नया गार्ड आया जिसको उसने पहले देखा नहीं था. सो शी गॉट शॉक्ड, एंड उसने उस शॉक में इतना तेज प्रेस कर दिया कि उसने अपना ही बच्चा मार दिया. सो इट कैन हैपन. आप इतना एक्सट्रीम कैसे बोल सकते कि नहीं हो सकता भैया, नहीं हो सकता? ये आर्टिकल आया था, तो देख लेना. इसका आंसर भी क्या होगा? ए. बी इज इनकरेक्ट. नॉट जस्ट टाइगर्स, फीमेल्स कैन ऑल्सो. अब भाई ज्योग्राफी का ना ये टॉपिक है एक, ये होती है लोकल विंड्स. पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? सैंटा आना, ये आपको टॉपिक में ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा. भाई अब ये न्यूज में थी, तो फिर सारी ही विंड्स इंपॉर्टेंट है. मैंने सारी लिख के दे दी है, इनको रट लेना. कौन सी कोल्ड है, कौन सी हॉट है. ठीक है. अब ये था टॉपिक, तो कुछ नहीं कर सकते, एक बार पढ़ना पड़ेगा. हाँ जी बिल्कुल. तो अब ये यहां पे थी सैंटा आना, कहां पर कौन सी है, कौन सी कोल्ड है, कौन सी हॉट है, बना दिया है डायग्राम. इसको एक बार पढ़ लेना. ठीक है. इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसकी जितनी फाइंडिंग्स है, कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है, ये हमारे कैप नोट्स में से मैंने उठा के डाल दिया है. क्लासिफिकेशन कैसे होती है, डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट, स्कर्ब एंड नॉन फॉरेस्ट, ये सारी क्लासिफिकेशन 1 2 3 1 2 3. भाई एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, सबसे ज्यादा इन क्वांटिटी, एंड ये एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया. कि भाई अगर इतना एरिया है, 90% ऑफ द एरिया फॉरेस्ट्री है, तो उसमें नंबर 1 आता है आपका लक्षद्वीप, सेकंड मिजोरम, थर्ड अंडमान एंड निकोबार. ये पढ़ लेना. ठीक है.
क्लाइमेट चेंज, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये तीनों कन्वेंशंस आपको पढ़नी पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है। बेसिक कंट्रीज, ये जो आपका ब्रिक्स है उसमें से आप ये रशिया हटा दो, ठीक है, और आप ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना को रख दो। ये आपके क्लाइमेट के रेफरेंस में बनाई गई थी, बेसिक कंट्रीज पढ़ लेना। बाकी ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड की ग्रीन हाउस गैसेस को काउंट करते घूमते हैं, और क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ठीक है, ये भैया ट्रैक करते हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ गया। इन दोनों के बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, ये सब मैंने मार्क करके दे दिया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बोरिंग ही है। लो भाई, नहीं देवेंद्र, कैप नोट्स में से जो आपको चीट शीट्स हैं वही मिलेंगी, मेंस वाले नोट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ चीट शीट्स मिलेंगी। जो बाकी नोट्स में से प्रीलिम्स की लायक चीजें थी वो मैंने यहीं पर ऐड कर दी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का जवाब दो। सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट एलिमिनेट करी? ये तो समझ आ गया ना, सबको समझ दिख रहा है ना। अब 1 और 3 में फंस गए। अब 1 ओनली या 1 और 3 ओनली? अब अल्टीमेटली वन स्टेटमेंट इज वेरी ऑब्वियस कि करेक्ट ही है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में बस इतना पूछा जा रहा है कि जो ये ब्रूसेलोसिस है ये जूनोटिक डिजीज है कि नहीं है। उन्हें आपसे ये पूछना था, उन्होंने ये पूरी कथा गा दी। पर अच्छा, अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल इजी है या वो इजी था? ये इजी है या पहले वाला था? ये था। क्यों? क्योंकि आपने सेकंड स्टेटमेंट देखी, एलिमिनेट करी, आंसर आ गया। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन को डिफिकल्ट ऑप्शंस कैसे बना देते हैं। तो समझना, अगर ऑप्शंस टफ बने हैं मतलब आपको गलत करवाने के लिए बने हैं, तो ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन सिंपल है तो इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। बाकी ये टॉपिक जूनोटिक डिजीजेस का टॉपिक है भाई। ये आपने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, जूनोटिक डिजीजेस के बारे में पढ़ लेना, जो भाई एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकते हैं। दो डिजीजेस के बारे में जरूर पढ़ना है, फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, एंड ब्रूसेलोसिस। दोनों आपके लाइफ स्टॉक में पाए जाते हैं, और इनसे आपको छुटकारा दिलवाने के लिए यू हैव द नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो टारगेट करता है इन दो डिजीजेस को, फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस इज जूनोटिक। इन दोनों डिजीजेस के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। अब सवाल है, जवाब दो। सवाल है, जवाब दो। कंफ्यूजन हो रही है कहीं? कुछ ऐसा है जो कंफ्यूज कर रहा है? नहीं? यस या नो? भाई क्या है जो कंफ्यूजिंग है? पहली स्टेटमेंट आपको मालूम होनी चाहिए कि हाँ ऐसे, ये तो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब स्टार कोलैप्स होता है तो ब्लैक होल बनता है। और एक ट्रिपल सिस्टम में, अरे भाई ब्लैक होल कितने हैं, कितने तो डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, ठीक है। तो बस, वैसे आप डिस्कवर हो भी गया लो, तो बस आपने अगर ये न्यूज भी ना होती ना तो भी आपने बोध ही मारना था, क्योंकि भैया तू क्या ब्लैक होल में जाके देखा है तूने? अगर 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 एग्जाम के 26 में कोई न्यूज आ गई तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन के बारे में भी, सुपरनोवा होता है, क्या होता है, ऐड कर दिया है डायग्राम, ठीक है। लो भैया, सवाल है, जवाब दो। अब ये क्वेश्चन या तो आता है या नहीं आता, यस या नो? अब देखो, जो भी लोग डी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, भैया आप क्यों तुक्के मार रहे हो? प्रोबा 3 यूरोपियन सोलर मिशन है जो इसरो ने लॉन्च किया है टू स्टडी सन। आपको ये आता है या नहीं आता? प्लीज इसमें उल्टे सीधे, अरे मेरे को गट फील आ रही है तो भाई वॉशरूम जा, ठीक है, यहां मत पे क्वेश्चन में मत कर, ठीक है। मतलब जब आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता ना, सिंपल बात है। यहां पर अपनी जबरदस्ती का दिमाग मत लगाओ,
आता है तो ठीक मार्क करो, घर चलो, और नहीं सुना आगे बढ़ो। हाँ जी, सी आंसर है इसका, प्रोबा 3। ठीक है, ये एक अजीब सी बीमारी का नाम है, जिसमें आपको अगर मैं बोलूं कि आप अपने आप को आईएएस इमेजिन करो, आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो आपको ये बीमारी है। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं आईएएस इमेजिन करो और आप सोच रहे हो मैं तेरे को अभी जेल भिजवा रहा हूं, ठीक है, जो तू मुझे पढ़ा रहा है अभी तक बैठ के, तो मतलब आप बिल्कुल ठीक हो। तो आप सपने कितने बढ़िया इमेजिन कर सकते हो, आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है, वो ये है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, और गजब बात देखो कि यार कई बार कितनी बेसिक चीजें हैं जो हम मिस कर जाते हैं। देखो, हमारे सारे प्लैनेट्स के मून्स हैं कि नहीं है? अब जरा सवाल देखो, बड़ा सिंपल है वैसे। हाँ, सही। जिसको भी ये पता है ना, बड़ा सिंपल है, जिसको फोबोस के बारे में पता है, जो मार्स का छोटू सा है, आपको पता है यहां पर वो B1 ही है बस। या जिसको आईओ ये पता है, या जिसको भाई टाइटन के बारे, आपको किसी के बारे में भी पता है, आप लिख सकते हो। ठीक है, आप देखो, क्वेश्चन इजी है लेकिन कुछ तो पता होना चाहिए। बाकी मैंने सारे जो सारे मून्स हैं हमारे प्लैनेट्स के, उनके बारे में यहां पे लिख के दे दिया है, एक बार देख लेना और उसमें क्या स्पेशलिटी है। ठीक है, पॉलिटी वेरी बेसिक। सेंसस के बारे में जो मैंने कैप के नोट्स में से निकाल दिया, ये सेंसस के बारे में इस बार था, तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट भी है भैया, जो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। डीलिमिटेशन के बारे बाद में क्या होगा एक बार देख लेना। उसके अलावा ये एक नेट बोरिंग सीलिंग का टॉपिक था, ये मैंने पढ़ाया भी था। इसके बारे में जो मेजर प्रोविजंस है आर्टिकल 292 और 293, ये देखना है। ठीक है, फिर इंपीचमेंट ऑफ जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और जजेस इंक्वायरी एक्ट में क्या लिखा है मालूम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा आपकी बत्ती खुल जानी चाहिए कि भैया नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता। बहुत कम चीजें होती हैं, पढ़ाया था, बड़े डिटेल में पढ़ाया था। अब तक क्या क्या इंपीचमेंट की हिस्ट्री रही है वो ये लिखी, यहां पर ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा, प्रियम्बल के बारे में तो इतनी चर्चा हुई थी, मैंने आपको बोला था स्टैटिक वाले लिंकेज में प्रियम्बल पे क्वेश्चन आएगा, ये वाला मुझे अच्छा लगा आर्टिकल, मैंने ऐड कर दिया। ये सवाल सॉल्व करो फटाफट, इजी क्वेश्चन है, जल्दी करना। भाई हर बार बिल्कुल आंख बंद करके मिनिस्ट्रीज नहीं एलिमिनेट करनी, हर बार नहीं करनी एलिमिनेट। पढ़ो तो, आपने तो रूल बना लिया मिनिस्ट्री दिखेगी एलिमिनेट करेंगे। नहीं क्यों, कई बार वो सही भी तो पूछ सकता है ना। अरे फार्मिंग के लिए और कौन सी मिनिस्ट्री है दोस्त? नहीं 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 उस्मा, वो सही है, डी है उसका आंसर यार। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है फार्मिंग के लिए और? मतलब यूपीएससी ये भी जज करता है कि बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ही आंख दिमाग बंद करके आए हैं यार, और कौन सी बनाएगी ये भाई, कौन सी मिनिस्ट्री बना देगी ये मिशन, और को अर्थ साइंसेस बनाएगी, कौन बनाएगा? ठीक है, इसको सॉल्व करो भाई, इसको करना सॉल्व, जल्दी करो फिर लेट हो जाएंगे, तुम्हारा कंसंट्रेशन हिल जाएगा वरना। अराकू वैली कहां पर है?
अराकू वैली कहां पर है, बस इतना बताओ मेरे को। बहुत बढ़िया, आंध्र में है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई अगर आपकी मैपिंग नॉलेज टेस्ट हो गई तो। 3 हट गया। अब बचा क्या, 1 to 4 एंड 1 and 4। 1 and 2 स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही दे रखी है, आपको मालूम होना चाहिए। रोबस्ता और अराबिका, अराबिका स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, रोबस्ता स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये क्या लॉजिक हुआ, 1 and 2 है ना। तो भाई इसका आंसर 1 to 4 है, बी है। अब बस क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ रहा था, अराकू वैली के बारे में पूछ रहा था। ये देखो, अराबिका माइल्ड होती है, ये सबको पता है। रोबस्ता क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर भी वो दिमाग मत लगाना कि अरे नहीं उल्टा करा होगा तो 1 and 2 तो रॉन्ग ही है, तो 1 2 हटा दिया, 1 and 4 मार्क कर दिया। ये इसलिए मैंने यहां पे रखा था कि कहीं ये सोचो कि नहीं अराबिका का इसमें, रोबस्ता का इसमें। इजी क्वेश्चंस जब होते हैं ना, जब वो आपको मालूम होने चाहिए, उसमें ट्रिक नहीं लगती है। यहां लगाने लग गए ट्रिक, कहीं यहां लगाने लग जाओ ट्रिक। अगर क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको लगता है ये तो मुझे मालूम होना चाहिए था ना, वहां पर ट्रिक नहीं चलती। ठीक है, ठीक है। बाकी ये कॉफी के बारे में पूरा मैंने चार्ट बना दिया है। बाकी जितने भी मिसलिनियस आर्टिकल्स थे यार, वो भी मैंने अटैच कर दिए हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये भैया रिसर्च वालों के लिए जो आपने वो नेटफ्लिक्स टाइप चीज बना दी थी, ठीक है, वो आप देख लेना और डन है। ठीक है, हो काफी ज्यादा इंटेंस हो गया। अब भाई फाइनली एक बार यहां पे दोबारा आ जाओ, जो अब तक जुड़े रहे हैं यार। अब जो टाइम स्टार्ट हो रहा है ना तुम लोगों का, अब भाई मेरा काम हो गया खत्म, सही बताऊं तो। या टीचर मेंटोर के काम होते हैं यहां तक। अब जो आखिरी में जो भाई पुश देना है ना, वो तुम लोगों को ही देना है। मैंने पढ़ा दिया, कंसोलिडेट कर दिया, सारे नोट्स बना दिए, कल तक आपको सब मिल जाएगा। करंट अफेयर कॉन्सर्ट, ये है डॉक्यूमेंट, आप देख सकते हैं। ये है 173 पेज, ये 172 आपको दिख रहा है, ये 173 तक है। ठीक है, ये पूरा कंसोलिडेट हो चुका है। मुझे बस इसको कन्वर्ट करना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है। उसके बाद प्रीलिम्स पार योजना, यहां से पढ़ना शुरू करना। पॉलिटी वाइज, पॉलिटी सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी उठा के अपना लाइन से पढ़ते जाओ। इसको खत्म कर लोगे अगले संडे तक तो मजा ही आ जाएगा। फिर बस मेरे साथ अगले संडे 9 बजे जुड़ो और उससे अगले संडे 9 बजे जुड़ो, खत्म। ठीक है। मीनवाइल प्रीलिम्स पार योजना 55 टॉपिक्स हैं, आराम से कवर होंगे। प्री रेडी 25 टॉपिक्स हैं, आधे घंटे में पढ़ सकते हो। प्रीलिम्स पार योजना 2 से 4 घंटे में हो जाएगी, 1 घंटे में ये हो जाएगा। मिलाकर अगर मैं बताऊं, 5 घंटे ये और 5 घंटे ये, 10 घंटे का टोटल काम है। 2 घंटे पर डे, 5 दिन। अगले संडे तक ये 3 पार्ट कवर कर लेना। अगला है भाई संडे 11 मई, फिर 11 से लेकर 18 तक, 11 से लेकर 18 तक क्या करना, अगर मैं आपको बता भी दूं, आज 4th है, 4th से लेकर 11 तक आप कैक, पीपीवाई और प्री रेडी करो। लो जी, 11 से लेकर 18 तक आप जनवरी एंड फरवरी जो मैं पढ़ाऊंगा उसे रिवाइज करोगे, प्लस आप प्रीलिम्स चीट शीट्स कर लेना। और 18 से लेकर 25 तक आप मार्च एंड अप्रैल मेरे साथ करके अगले दिन ही उसको रिवाइज करके और 5 मॉक लगा देना लास्ट वीक में, और आपका डन है। इसके सब जो ये हो रहा है, इसके साथ में आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, स्टैटिक में आप इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना। बस प्रीलिम्स चीट शीट्स करण भाई मेरे कल सुबह तक पक्का ऐड हो जाएंगी। ये सारी पीडीएफ हमको प्रोसेस करनी है, इनको वाटरमार्क करना है और फिर अपलोड करना है। ये काम भाई वो टीम करती है मेरी, उनको मैं बोल दूंगा, वो फटाफट कर देंगे उसके बाद। ठीक है, अब बताओ सारा खेल समझ आ गया। भाई करंट अफेयर में इतना ही करना है, 2 घंटे दिन के, उसके साथ में स्टैटिक पढ़ते रहो दबा के। यहां पर 2 घंटे लगाओ, 2 घंटे में क्या करना है, क्या प्रोग्राम रहेगा अगले 3 हफ्ते का बता दिया है। अगर कहोगे
अगर कहोगे तो एग्जाम से एक दिन पहले 10-12 घंटे का रिवीजन करा दें क्या? पर यार वो बड़ा ही ना माइंड में हेक्टिक होता है। आजकल मैं देखता हूं बहुत लोग करा रहे हैं, मैं भी करा दूंगा करंट अफेयर का पूरा एक साथ। करा दें क्या बताओ? चलो फिर ठीक है। फिर एक काम करते हैं, आपके एग्जाम से पहले, संडे को एग्जाम है तो सैटरडे को तो नहीं, फ्राइडे मतलब कि 23 को ट्राई करते हैं। ठीक है, 23 को पूरा 10 से 12 घंटे का मैराथन करके जो सब जो है ये सारा कुछ ये रिवाइज करा देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। आई होप यार मतलब आपको ये मेहनत अच्छी लगी होगी, काम आएगी। अच्छी तो क्या ही लगे यार, अच्छी लगे ना लगे, आपके काम आनी चाहिए, वो बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। तो यार ये है कि आई होप आप लोगों को ये चीज हेल्प करे, क्वेश्चंस आए, मैं भी यही चाहता हूं। सी सैट के लिए मैंने आपको फिर बोला है भाई, जो सी सैट पूछते रहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करके आने ही आने हैं। उसी के साथ में क्वांट अगर पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, 3 टॉपिक पढ़ जाना। एलआर फैमिली वाले जो क्वेश्चन आते हैं, सीरीज वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन है, बस तब अटेम्प्ट करना एलआर के क्वेश्चन जब 100% श्योर हो। आरसी के कम से कम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, 10 क्वेश्चन क्वांट के गारंटी इन टॉपिक्स में से आएंगे, और एलआर में से 5 से 6 क्वेश्चन उन्हें ही अटेम्प्ट करना जो 100% आते हैं। 45 to 50 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करना, अगर डर लगता है तो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा श्योरिटी हो वही अटेम्प्ट करना। ठीक है, बस ये भाई मेरी तरफ से था करंट अफेयर्स का काम। 2 बार आपसे और मिलना है, ठीक है, 2 बार आपसे और मिलना है, अगले संडे और फिर उससे अगले संडे। अगर अच्छा लगा हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं। कोर्स के फीडबैक में जाके कोर्स का फीडबैक ऐड कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई होप ये सब पढ़ के, कॉन्सेप्ट्स को समझ के आपको हेल्प हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो। और ऑल्सो एग्जाम से पहले 1 हफ्ते पहले मैं आप लोगों के साथ एक सर्टेन टाइम रखूंगा, जब मैं हर दिन उन 2 घंटे में एक गूगल मीट का लिंक ऑन करके आपके साथ बैठा करूंगा। ठीक है, आप आइए, मेरे से बात करिए, जो डाउट है, जिसका जब मन कर रहा है आके बात करो। आई विल बी अवेलेबल थ्रू आउट दैट वीक। ठीक है, पढ़ने की बात करनी है, कोई स्ट्रेस हो रहा है उसकी बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करो, ठीक है, कि भाई ये करंट अफेयर्स करके देख, ये टॉपिक्स पढ़ के देख, उनसे पूछ के देखो तेरे को आता है ये, और देखो जो उन्होंने बाकी मटेरियल पढ़ा है क्या वो इसको आंसर कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चंस जिस तरह से मैंने आपको करवाए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं, इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना। कहो तो इन क्वेश्चंस की भी अलग से पीडीएफ बना दें, सारे जो क्वेश्चंस कैक में मैंने बनाए हैं। ठीक है, ये भी बना देंगे। इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेना एक बार लास्ट में दोबारा से। ठीक है, तो ये करो। प्रीलिम्स चीट शीट्स और पंचामृत टेस्ट सीरीज भी यार ले लो, काम ही आएगा। ठीक है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 500 रुपए की चीज है। ठीक है, आपके काम में ही आएंगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो, बाकी आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। ऑन दैट नोट मिलते हैं फिर आपसे अगले संडे को। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, बाय।